जायना they gorno advertisement board acha makshi basachi. Please, this is a humble request. कृपया मुंबई पल्टन्स के अतिरिक्त सदस्य कृपया स्टेज पर संपर्क करें। खिलाड़ियों के नाम यहां पर बताने के लिए मुंबई पल्टन्स के अतिरिक्त सदस्य extra member of Mumbai Pultons to please report to the stage immediately to tell the player's name. So back, right, the big battle of Puzalona GPL Utsav 2021 edition 5 is now going to begin. World's number 1 GSB event and absolutely jam-packed stadium and the final battle is now going to begin. So that's the story, and the fielders of Mumbai Pultons are now slowly walking towards the crease. और मैं समझता हूँ सतीश यहाँ पर एक बेहतरीन संघर्ष हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों संतुलित टीम है मुंबई पल्टन्स और वोलालंके फाइटर्स मुल्की। और जहाँ तक सवाल है मैच के विजय का तो मैं कहूँगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन इन दिस बिग फिनाले ऑफ Puzalona GPL Utsav 2021 edition 5. Absolutely, Gopi. The two teams deserve this final in this most prestigious cricket tournament because both the teams has played a fantastic game of cricket in the league matches, even in the Super Sixes, and of course in the semi-final as well. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನ ಗಿರಬಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. They corno boundary line सोडायचे आणि मागशी बसायचे. It's a humble request. आपास आम्ही सांगता सची boundary line सोडायची आणि मागशी बसायची. Advertisement बोर्डाच्या एदरा तुम्ही बसा ना प्लीज. So right, Gopi, and we are talking about these two teams, the possibility of becoming the champion. Both the teams, absolutely, they got opportunity to become the champion. The way they came into this big final, that was not an easy job. The big hurdles they faced, and after winning all that hurdles, and they deserve this place in the final. But job is not over. Just one step remaining to become the champion. That's why this battle is going to be very interesting. आमगे लट्टू अट्टीकेरे विश्वनाथ पै अण्णा सह हंकायामा कोडियाल स्पोर्ट्स आणि यूथ ऑफ जीएसबी तर्फे ना हार्दिक स्वागत करतेस. Right, and very interesting, Gopi. And after the toss, I think captain of Volalanke Fighters, Sharath Prabhu, rightly and quite interestingly, they elected to bat first. And most of the captains, after winning the toss, they elected to field first. But here, the captain of Volalanke Fighters, after winning the toss, they elected to bat first. What do you think? What could be the strategy? What could be the game plan behind that one? Maybe the dew factor comes into play. Dew factor already it's affecting both the teams, but might be the chasing means it was a little bit under pressure. If they able to get 40 to 45 runs in the first 8 overs, this is an 8 overs game, and it's going to be a little bit under pressure situation for Mumbai Pultons. बिल्कुल जिस तरीके से टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है उसके पीछे ये रणनीति हो सकती है कि पहले ज्यादा से ज्यादा स्कोर खड़ा करे और सामने वाली टीम मुंबई पल्टन्स को उस स्कोर के अंदर वो रेस्ट्रिक्ट करे. और यहाँ पर ड्यू फैक्टर जरूर काम आता है सतीश क्योंकि यहाँ पर जो घने घास है मैदान पर वो घने घासों पर ड्यू गिरने की वजह से वो घास गीले हो जाते हैं और बॉल गेंद ठीक तरह से ट्रैवल नहीं करती है. तो इसका ये वजह है कि पहले बल्लेबाजी करके ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बटोरे और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा यहाँ पर ड्यू जो कि ज्यादा गिरती जाएगी और मैदान ज्यादा गीला होता जाएगा. तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ वोलालंके फाइटर्स मुल्की ने पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय जो कि यहाँ पर लिया है. और ओवर मेगा फाइनल मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. पहली गेंद ऑफ द बैक फुट गेंद को हल्के से फ्लिक किया था. शॉट स्क्वायर लेग पर रन से नहीं मिलेगा. और मैं समझता हूं सतीश इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग मेगा फाइनल ऑफ Puzalona GPL Utsav 2021. Absolutely, Gopi, and already the first ball is delivered and batsman Prajwal of course not quite able to get any run for that because that ball little bit lifting of delivery for the batsman and batsman just placed the ball down to short square leg region, but there is no chance of any run. Gauran.
Left arm round the wicket he bowls, and it's going to be wide. The first run comes up here. The first run of the final, the mega final. Here for Valalanke Fighters. One without loss of any wicket. Gaurang Wachikar as the bowler. Is a successful bowler for the Mumbai Pultons. Always he given a good start for his team in the power play overs. Outside the line of time with his offered batsman going over the infield towards the deep extra cover boundary. The fielders chasing the ball, but ball winning the race against the fieldsman. That will going to be a fuzzle on the boundary of the final. First boundary of the final. Wonderfully played that one. A little bit which is offered outside the line of off, and batsman got a plenty of time to rock back and slashing the ball over the head of the infield. Look at that one. No chance at all for the fieldsman to chase that one, and ball winning the race. He won the wet outfield, but still because of the power in that stroke from the bat of Prajwal Shanai, he got a boundary. Very important boundary here for Valalanke Fighters. Of course, Valalanke Fighters, what outstanding performance throughout the tournament. Both the teams played a magnificent game of cricket. That's why they deserve this place in the big final. Gaurav Vatikar bowling around the wicket again. This one beautifully bowled and misfield there by the short mid-off fielder, and the batsman got opportunity to cross off for a single. Of course, this is not an easy job for the batsman Gopi. At the same time, not an easy job for the bowler, and even not an easy job for the fieldsman as well, because very difficult to grip, isn't it? Because of the wet, the grass here, and most difficult for the outfielder to field the ball, and that's what you're showing, that mid-off fielder couldn't manage to collect the ball, slipped out, and mid-off, a little bit correction, the long off fielder managed to cover that one. A batsman picked up a single. 6 on the board, and out of that 6, Prajwal Shanai scored 5 runs. That brings Rajat into strike now. Gaurav Vatika bowls. Batsman Rajat tried to turn that one in the onside region off the back foot, but not quite able to have any contact with the bat. Maybe the reason that ball is not really coming to the bat. And Rajat Gopi is the one key player for Valalanke, because he played a magnificent innings in the previous match semi-final, and he is won the man of the match award as well. But this match, the big final, he need to contribute from the bat. Again, a little bit across the line of the delivery. Rajat tried to play in one of his favorite stroke. That was a slog sweep. He wanted to play every time in this power play overs. But this time again, batsman bowler, little bit intelligent, shortening the length. Didn't allow Rajat to reach the pitch of the delivery. Mistimed it, but he picked up a single anyhow. 7 without loss of any wicket here in the O number first in progress. What a fantastic atmosphere. Absolutely a festival atmosphere out here in this most beautiful cricket ground here in Adyar, Sahyadri College cricket ground. And look at that view. Absolutely, you can't never get anywhere this kind of scenario. This is an outstanding cricket tournament in the name of JPL Utsav 2021. Last delivery of the over. Batsman quite delicately played that one. Just allow the ball coming into the bat. Maybe that was a full toss delivery, but batsman quite intelligent in the occasion. Knows that it was a very difficult hit, the big shot. There is a protection there in the deep mid-wicket. So he just a gentle pushed that one down to short mid-wicket region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 8 on the board after completion of first over. And Gopi, it's not necessary to, after winning the toss, elected to bat first, but implementing your strategy into performance is very important. बिल्कुल आपके जो योजना है उसको कार्यगत करना बेहद ओव्हर जरूरी होता मध्ये है तो यहाँ पर। ಸ್ವಲ್ಪ वीक्षकालागी उलोचा प्रयत्न करता जी गोपी जी ओव्हर के बीच में थोड़ा 1 मिनिट दीजिए उलोया नमस्कार खई तुला नेता तुम्ही कोडियाला खोडियाला कश झालं यहाँ पडी जीपीएल उत्सव 2021 लाई जावे केने 3 दिवस व्हायले की आज मात्र कालेनी आजी फायनल जाता असा वळलंके मुलकी आणि मुंबई पलतांचा मध्ये कोण विन जाता मुल्की मुलकी विन जाता असं म्हणून सांगता असा पळया अनेक बॉल गलची भित्री आणि कोणाला गेम मुलोचा प्रयत्न करूया नमस्कार माम तुम्ही नाव सांगायची आणि कंची गावा तुला येल्याची म्हणून दामोदर भागवत मुलकेचो आसूच कोड्यालांत मुलकेच म्हणता तुम्ही खंडित मुलकी का सपोर्ट त्या विषयावर निमगे ना जीपीएल विषय सांगायचं आमगेल जीपीएल 2021 विषय ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಳೇಲಂತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಯಾಂತ ಸೊಳ್ಳಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GPLS त्या लेवलार येवन पावल्यांची आम्ही यूथ ऑफ GSB आमगेले कोंकणी आनी पुरा जनाल तर्फेन हांव तांकां एक व्हडली थँक्स दिसता आनी आमकां लायफान तो असल केन्ना केन्नाय पळोवची स्कोर वचची म्हण सांगून यूथ ऑफ GSB विश करतास
मस्त धन्यवाद तुमगेले प्रीती सहकार अशी आमगेले वयर आसा म्हणून निमून घेतारस ओवर टू गोपी. धन्यवाद। और यहाँ पर दूसरा ओवर शुरू होता हुआ और पहली गेंद लेकर तैयार ऑफ द टॉस, गेंद को हल्के से फ्लिक कर दिया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में और एक रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुका। सतीश बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, योजना सिर्फ बनाना जरूरी नहीं है, उसे कार्यगत करना जरूरी है। और यहाँ पर जो योजना के साथ टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था वोलालंग के फाइटर्स के मुल्की के कप्तान ने, उस योजना को किस तरह कार्यगत कार्य रूप में लाते हैं उनके बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है। इस वक्त 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान पर और मैं समझता हूँ एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, खासकर 3 पावर प्ले ओवर में एक बेहतर शुरुआत दिया दोनों सलामी बल्लेबाज प्रज्वल शनाय और रजत देते हैं तो निस्संदेह वोलालंग के फाइटर्स मुल्की एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर हो सकता है। Exactly, Gopi. It is very important to lay the foundation, isn't it? Whenever you wanted to get a big score, the opening batsmen have to contribute. And these two opening batsmen, I think left and right combination, very effective throughout the tournament. And this is the one more opportunity here. Big final, they have to contribute from the bat. This time, Rajat pulling that one just over the fine leg fielder. Ball is running towards the deep fine leg region. And just inside the fence, the fieldsman able to pull the ball inside the boundary line. And batsman got ample time to complete that couple of runs. Little bit short pitch delivery. Batsman Rajat is a very good puller of the ball. Quickly going back, rocks back and pulls that one. But quite unfortunate, not able to get the boundary. But certainly got a couple of runs for good-looking pull shot. With that couple of runs, scoreboard moves on to 11 without loss of any wicket. Every kind of battle we can expect in this big finale of this most prestigious JPL 2021. Here is the next one. A batsman going for the big shot. Blind shot is attempted. Appeal for caught behind. But more than confident. It was just looks like the wicketkeeper behind the stump. Little bit of excitement. You know exactly the ball is missing his bat. Look at that one in the replay. Little bit outside the line of off time. Batsman tried to play across the line of the delivery. Missed the ball completely. And there is no possibility of any run. This time Rajal going for the big one. High up in the air. 2 fielders there, and who will going to take the catch? Yes, one of the fielder from the deep backward square leg region takes the catch. That's the end of Rajat's innings. This is going to be a big blow here for Wolalang fighters. आमगेले स्पॉन्सर यजमान हज श्री वरदराय पै हांका आमगेले वॉलंटियर लागीं हांव निमून घेता दय करून तुमी वेदिकेर येवन आसीन जावका म्हणून प्रिती निमून घेता आमगेले वॉलंटियर तुमगे लागीं येवन तुमकां आमंत्रीत करता आसा दय करून तुमी येवका वेदिके लागीं. So thank you, Gopi. Just coming back to that dismissal, the first wicket is back in pavilion. Rajat, one of the key player for the side of Wolalanke. And just look at the dismissal, Gopi. Just I watching in the replay, maybe the bowler bowling that slower one, isn't it? Because Rajat is a kind of batsman. He loves to play when ball is coming very nice to the bat. And that was a really problem here for Rajat. Under the floodlight, it's not that much of easy to make a stroke maker to hit the ball. And that was really lacking in this stroke. Ball, of course, not coming to the bat, and he taken an aerial route, didn't got that much of distance, didn't got that much of timing, pays the penalty for that, and first wicket is back into pavilion. Aditya bowls to Prajwal this time quite watchful, you know exactly his appearance till the 7 overs is going to be more important. He is the kind of batsman who can play the long innings here for Wolalanke, technically very sound player for the side, and his responsibility to hang in the other side to take this team into some good score against one of the best team in this cricket tournament, Mumbai Paltans. 12 for the loss of 1 wicket. Umpires, Rajeshwar, and at square leg, umpire Rajarathan. Dead ball call by umpire. Aditya is got 1 wicket. It's a big wicket. The level of confidence always going to be high whenever you're picking up a 1 big wicket of the opponent. Certainly, the level of confidence is going to be very high. Here is the next one. Beautifully bowled, equally well played by the batsman, but lack of placement. Sharath Prabhu, one of the highest run getter in this tournament, just came into middle here. His responsibility, you know exactly. This is the final, Gopi. Of course, all the performance definitely
going to be a not that much of important than the performance in the final, isn't it? Lifting of the prestigious trophy, it's not that much of easy because Mumbai Paltans, one of the favorite of winning this cricket tournament, how they came into this big final, and even Volalanke, you cannot underestimate their batting department and bowling department as well. बिल्कुल फाइनल में आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन देना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप फाइनल मैच में श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं देंगे तो श्रृंखला में जितने भी मैचेस में आप श्रेष्ठ प्रदर्शन दिए हुए हैं वो हालांकि फीके पड़ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें इस वक्त एक बेहतरीन प्रदर्शन देना जरूरी है, एक बेहतरीन स्कोर खड़ा करना जरूरी है वलालंके फाइटर्स मुल्की को। और जहाँ तक सवाल है वलालंके फाइटर्स मुल्की का, तो उन्हें इस वक्त रन्स बनाने हैं अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ मुंबई पल्टन्स, और मुंबई पल्टन्स के खिलाफ गेंदबाजी के खिलाफ रन्स बनाना उतना आसान नहीं है। और मैं समझता हूं वलालंके क्रिकेट फाइटर्स मुल्की के बल्लेबाजों में वो क्षमता एबिलिटी यहां पर मौजूद है कि वो रन्स बना सकते हैं अगर वो जमकर क्रीज पर टिके और खुलकर बल्लेबाजी करें। लेकिन ये सब करने के लिए मैं समझता हूं उन्हें कुछ विशेष रणनीति डिफरेंट टैक्टिक्स यहां पर अपनानी होगी। सतीश, Exactly, Gopi. That's what we were mentioning about. And at the same time, Gopi, coming back to that, two captains of Mumbai Paltans, Prasad, and captain of Volalanke, Sharad Prabhu. Both the players leading from the pen, they performed very well throughout the tournament. Whenever the captain performed, it will definitely go into inspiration for the other players as well. That's why they got a success here. And now it's going to be a fight between two very good captains. बिल्कुल दोनों टीमों के कप्तान में इस वक्त संघर्ष जारी है और मैं समझता हूं यहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार इस वक्त गौरंग, ये गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त गली पर, एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो जिस लेफ्ट आर्म राइट आर्म कॉम्बिनेशन के बारे में हमने जिक्र किया था सतीश, वो लेफ्ट आर्म राइट आर्म का कॉम्बिनेशन इस वक्त टूट चुका है और पहला विकेट रजत के रूप में गिर चुका है। खासकर ज्यादातर मौके में देखा गया लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, आरंभिक कॉम्बिनेशन कभी भी फायदेमंद साबित होता है। अगर आप स्टेट लेवल नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में निकाल कर देखा जाए तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन सौरव गांगुली सचिन तेंदुलकर कहा जा सकता है। एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ आरंभिक जोड़ी के रूप में जानी जाती थी। मार्क टेलर, माइकल स्लाइटर ऑस्ट्रेलिया के 90वें दशक में जो बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। और यहां पर अगली गेंद को इस वक्त हल्के से खेल दिया, स्टीयर किया था, इस वक्त गेंद पहुंची थी गली की दिशा में और इस बीच रन्स बल्लेबाज को मिले एक, 13 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है एक विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है, और इन वे बैक इन 80s decades, Graham Gooch and Chris Ward of England, one more successful opening pair who grabbed plenty of runs because of opening partnership. और यहाँ पर इस वक्त एक विकेट गिर चुका है, लेकिन दो बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद हैं इस बार उन्हें इस वक्त क्रीज पर रुकना है। इस बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर सकता है, गिर चुका है और इसी के साथ ये विकेट का पतन यहाँ पर हो चुका है। So what a beautiful scenario, right from our commentator box to the ground, absolutely jam-packed stadium. और यहाँ पर जो विकेट प्रज्वल शनाय का गिर चुका है, मैं समझता हूँ सतीश कुछ हद तक दबाव को इस वक्त बढ़ा चुका है वल्लभके फाइटर्स मुल्की के सामने। और इस वक्त जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, शरद प्रभु की उपस्थिति उन्हें इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि शरद प्रभु ने इस श्रृंखला के पिछले मैचेस में बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिया है बल्लेबाजी के जरिए। लगभग 6 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 3 से 4 मैचेस में उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है। तो उस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इस फाइनल मैच में भी वो आगे बढ़ाना चाहेंगे, उस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के सिलसिले को कहना पड़ेगा, इस मैच में वो आगे बढ़ाना चाहेंगे। देखते हैं इस मैच में वो क्या करते हैं। बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद
ड्राइव किया खूबसूरती के साथ ऑफ द टोज राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल, गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड ऑन पर, और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। और ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं आउटफील्ड लगभग गीला है, गेंद ट्रैवल नहीं कर रही है इस वक्त, उन्हें अपनानी है सूझबूझ का क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और उस तरीके की क्रिकेट को वो अपनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते हुए। और अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस, अंडर दीस कंडीशंस, अंडर ड्यू फैक्टर मैं कहूँगा, इस वक्त कम से कम 8 ओवर में 50 के आसपास भी अगर रन बनाता है तो चुनौती भरा लक्ष्य यहाँ पर खेलाएगा। और निस्संदेह बल्लेबाजों के दिमाग में ये बात जरूर चल रही है कि किस तरह क्रीज पर टिका जाए और किस तरह रन से बटोरा जाए कुछ विशेष रणनीति के साथ, विद डिफरेंट टैक्टिक्स। और इस बीच गेंदबाजी गौरव वर्तिकर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ, ये गेंद बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ निकाला, इस वक्त गेंद को कट किया था और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इससे पहले कि गली पर गेंद को फील्ड किया जाता। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 2.5 ओवर्स गॉन इन देयर इनिंग्स। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मेगा फाइनल मैच ऑफ बार्सिलोना जीपीएल उत्सव 2021 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर, एडिशन 5, वर्ल्ड्स नंबर 1 GSB event. And the climax of this tournament is now progressing here in the face of mega final, grand finale. And what we are telling, और जहां तक सवाल है यहाँ पर गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, गौरंग बाएं हाथ, ये गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, इस वक्त गेंद के लाइन पर आते हुए, जब इससे पहले कि मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 3 ओवर की समाप्ति, एग्जैक्टली द प्रेजेंट रन रेट इज नाउ 5.66 रन पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिंग फॉर देम। और मैं समझता हूं सतीश, 2 विकेट गिर जाने के बाद ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपना रहे हैं, वो निस्संदेह सही बल्लेबाजी है इन हालातों में। Exactly, Gopi. They are playing as per the condition required, isn't it? Because they know exactly that they're very difficult to hit the big shot, and the rotation of strike is more important. And always I'm mentioning about, you cannot neglect that singles in limited over matches, Gopi. Even, of course, the limited over matches, every batsman wanted to hit the big shot, but singles, always it was just like a raindrops. Maybe it was small in a size and shape, but continuous fall of raindrops makes rivers overflow, isn't it? That's why it's so important here for the batsmen of Walalanki cricketers. At least you rotate the strike. 48 balls, 48 runs, then excluding wides and no balls, it's going to be a 50 plus. So sensible batting always required here for Walalanki cricketers, because they are playing against one of the best team, Mumbai Pultons. बिल्कुल, इस वक्त जिस तरीके की बल्लेबाजी वो अपना रहे हैं, ये बल्लेबाजी उन्हें अपनानी चाहिए, विकेटों की सुरक्षितता पर ध्यान देना चाहिए। और निस्संदेह जैसे कि आपने फरमाया, सिंगल्स जो कि पानी के बारिश के चंद बूंदों की तरह होता है, अगर वो बूंद जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बाढ़ भी आने की संभावना होती है, दरिया उभर सकता है। तुम्ही वेदिकेरी म्हणून घेतस दे कोरनो और यहाँ पर हंगे गणपति में मयम गेंदबाज इस वक्त तैयार, अजय नायक, और चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ वलालंके फाइटर्स मुल्की की बारी में। और अजय नायक 3 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर्स मैदान पर छा चुके हैं। और इस बीच पहले गेंद ऑफ द टॉस, फुल टॉस गेंद को खेल दिया, इस वक्त मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती है, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इससे पहले के पीछे की ओर दौड़ कर रहा है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 18 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। शरद प्रभु और नवीन प्रभु इस वक्त क्रीज पर मौजूद, एक साझेदारी की तलाश में। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो अजय नायक इस वक्त विकेटों की तलाश में गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, फील्डिंग में जमावट करते हुए। डीप थर्ड मैन फील्डर को आगे इस वक्त बुला लिया गया है, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन दिखाई नहीं देता हुआ। और जहां तक सवाल है लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग नहीं, स्क्वायर लेग 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, बैकफुट पर गए, गेंद को इस वक्त कट किया, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ। 1 रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 19 रनों पर, माफ कीजिए, 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, अभी भी अपनी सही राह को तराशता हुआ वलालंके फाइटर्स मुल्क, और ऐसा कहना पड़ेगा मुंबई पल्टन्स के गेंदबाज एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए। गेंदबाज अजय नायक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट,
पटकी हुई गेंद स्टीयर किया, बैकफुट पर जाने के बाद कोई फील्डर वहां पर नहीं, बैकवर्ड थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आए, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। गेंद अपने रफ्तार को खोते हुए घने घास के जरिए जो गीली है इस वक्त उसकी वजह से वो रुक चुकी है, और जब तक फील्डर बैकवर्ड थर्ड मैन से दौड़ कर आकर आगे की ओर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। चौके और छक्के लगाना इन हालातों में उतना आसान नहीं है, और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए, किस तरह गेंद को देखकर परखकर इस वक्त बल्लेबाजी करनी चाहिए, और उसके अनुसार उसके अनुगुण वो इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम्स के लिए इस वक्त रन बटोरते हुए और एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए अजय नायक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना ओवर द विकेट। ये गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर। ऑन साइड पर गेंद को फ्लिक करना चाहा था, और मैं समझता कुछ हद तक उन्होंने अपना फुट को लिफ्ट किया था। जब विकेटें चटकाए गए, गिल्लियां बेल्स उड़ाए गए, तब देखना है कि उनका जो फुट है हवे में था या नहीं, और दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स। और इस वक्त अंपायर्स इस अपील का परिशीलन यहां पर करते हुए एंड द डिसीजन कम्स एंड इट्स अ नॉट आउट। जब विकेटें उखाड़े गए थे, विकेटें चटकाए गए थे, तब बल्लेबाज अपना पैर क्रीज पर, फुट क्रीज पर वापस रख चुके थे, तो इस गेंद पर बाल बच चुके हैं बल्लेबाज, और स्कोर यहां पर रुक चुका है 20 रनों पर, जबकि 3.4 ओवर का खेल यहां पर पूर्ण हो चुका है। 8 ओवर का फॉर्मेट, ये मेगा फाइनल मैच इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत पुजलोना जीपीएल उत्सव एडिशन 5 2021 वर्ल्ड्स नंबर 1 जीएसपी बिगेस्ट जीएसपी इवेंट, और यहां पर इस श्रृंखला का सबसे बड़ा मैच कहा जाएगा, ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड फाइनल कहा जा सकता है। यहां पर एक बेहतरीन प्रगति करता हुआ और इस प्रतिष्ठित जीपीएल का खिताब अर्जित करने के लिए संघर्ष जारी है इस वक्त दोनों टीमों के बीच। दाईनाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फ्लाइट हेड कट करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट मैन पर, रन के लिए दौड़ पड़े, तो इस वक्त थ्रो पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज मैं समझता हूं क्रीज पर पहुंच चुके हैं, और बेल्स के लाइट्स जो कि इस वक्त रिफ्लेक्ट होते हुए और यहां पर रन पूर्ण कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए किस तरह से गेंद को इस वक्त कट करना चाहता, विकेट कीपर चुके, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंचे, पहले स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज हिचकिचाए जरूर, लेकिन आखिरकार रन से पूरा करने में सफल, दूसरे छोर पर सफल होकर पहुंच चुके हैं वो। और इस बीच गेंदबाज अजय नायक फील्डिंग में जमावट करते हुए शरद प्रभु के लिए ठीक उसी तरह का क्षेत्र रक्षण, स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, शॉर्ट फाइन लेग, जबकि शॉर्ट मिड विकेट इस वक्त शॉर्ट कवर तैनात, 4 फील्डर 20 के दायरे के अंदर तैनात, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद थोड़े से सफल होते हुए स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, एग्जैक्टली 5.5 रन्स पर ओवर, द प्रेजेंट रन रेट इज नॉट गोइंग ऑन हियर फॉर देम। और मैं समझता हूं ये रन रेट इन हालातों में, इन दिस कंडीशंस, इट्स गोइंग टू बी बेहतर रन रेट कहा जाएगा, 5.50 रन प्रति ओवर, और 4 ओवर का खेल बाकी है सतीश, और मैं समझता हूं 4 ओवर में अगर कम से कम 25 से 30 रन भी बटोरता है वल्लंक के फाइटर्स, तो निस्संदेह कुछ हद तक दबाव मुंबई पल्टन्स की बल्लेबाजी पर आ सकता है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। लेकिन इसके लिए वल्लंक के गेंदबाजों को राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक बेहतरीन गेंदबाजी करना जरूरी होगा, क्यों सतीश? Exactly, Gopi. And so far looks like Naveen Prabhu and Sharad Prabhu, they're playing as per the condition required. They have got some kind of game plan. Of course, Sharad Prabhu being the captain of the side, you know exactly what kind of technique to be implemented to get some good score in this condition, so that they're really adopting the right strategy, right game plan, that they are rotating the side, that they're not really looking for some big shot so that they can lose the wicket. But for Mumbai Pultons, Gopi, it looks like
they wanted to pick the wickets in frequent intervals. Otherwise, if it was a 50 plus runs on the board, definitely it's going to be a very dangerous year for Mumbai Paltans when they're going to bat in the second session of this big finale. Meanwhile, Prasad Naik, captain of Mumbai Paltans, bowling to captain of Valanke Fighters. It's going to be a very good contest between bat and ball, Gopi. Wait and see which captain will going to win the race here. Sharath Prabhu got a lot of runs from the bat. Even Prasad Naik is also got a lot of runs in his bat, and both the bowlers picked up a wicket as well. First delivery quite nicely plays it down to deep mid-on, little bit correction, short mid-on region. Sharath so good in it. And I'm just watching his innings, Gopi. I'm just watching this just wagon wheels, how he got the runs. The most of the runs he's got towards the mid-on, mid-wicket and deep long. That means he was got a lot of wrist work in his batting performance. Using a lot of wrist. Because of wrist work, he's getting good timing behind every strokes he's implementing. That's why he's got a lot of success in his batting. Now, job is not yet over. Sharath Prabhu is out of the strike. Naveen Prabhu back into strike now. Prasad Naik, captain of Mumbai Paltans. Wait and see how Prasad Naik will going to break this partnership. All right, I'm over the wicket. Balls Naveen, bad delivery down the leg stump. Little bit correction. Yes, it is. That was pitching outside the line of leg stump. And Prasad Naik quite lucky in the occasion because batsman couldn't manage to reach the piece of the delivery. Naveen wanted to reach that one so that he get some bounded towards the deep fine aggression. He missed it, but umpire not missing here to signal the wide. This time, what a stop! That was a chance of run out. Appeal for run out. Umpire rightly says it's a not out. That was a fantastic umpiring, Gopi. You can see that ball is not in the hands of wicketkeeper. The ball is missed, but bails are off, not from the ball, but hand is just touching the stumps. That shows the quality of umpiring, Gopi. Just coming back to this cricket tournament, Gopi, this tournament is going towards a successful one only because of they got fantastic umpiring panel. And most interesting thing to see in this umpiring panel, Gopi, two brothers officiating. One is Atmaram and Rajeshwar. And more than anything else, one more interesting is a father and son officiating in this tournament. That is none other than one is Rajaratna sir, is a father, and son Viraj is officiating in this tournament, and this tournament definitely going to be memorable for these four umpires, along with, of course, Atmaram and Shriniket is one more umpire. एग्जैक्टली सतीश अंपायरिंग का पैनल एक्चुअली बेहतरीन इस श्रृंखला के लिए और निस्संदेह इस श्रृंखला के 3 दिनों को अगर हम नाप तोल कर अगर देखते हैं तो हर मैच में बेहतरीन अंपायरिंग यहाँ पर हमें नजर आई है और यहाँ पर गेंद को उछाल दिया है। गेंद इस वक्त पहुंची है लॉन पर और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। नवीन प्रभु का विकेट यहां पर गिर चुका है। 26 रनों पर तीसरा विकेट खो चुका है। शरद प्रभु यहां पर मौजूद है और मैं समझता हूं यही एक वक्त है इस वक्त मुंबई पल्टन के गेंदबाजों को शिकंजा कसने का। यहां पर 1 या 2 विकेट वो कम अंतराल में प्राप्त करते हैं तो निस्संदेह मैं समझता हूं मुंबई इंडियंस इस मैच में वापस आ सकते हैं। ये देखिए किस तरह से फुल टॉस गेंद को उछाला था और गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर और आखिरकार जैसे ही फील्डर ने भापा की गेंद उनके आगे टिप्पा खाने वाली है, थोड़ी सी मिस जजमेंट, आगे की ओर डाइविंग लगाई और गेंद को मैदान के कुछ ऊपर उन्होंने दोनों हाथों से दबोच लिया और निश्चित रूप से इस बेहतरीन कैच की वजह से तीसरा विकेट गिर चुका है। एंड दिस इज द राइट टाइम्स, जैसा कि मैंने पहले चंद लम्हों पहले फरमाया था, दिस इज द राइट टाइम्स फॉर द बॉलर्स ऑफ मुंबई पल्टन्स टू टाइटन अप द स्क्रूज at this situation. Absolutely, Gopi. This is the right time for tighten up the screws because they got one big wicket, the wicket of Naveen Prabhu. But look at that dismissal, Gopi. That was a juicy full toss, isn't it? That was a juicy full toss. So it was sometime luck, isn't it? Prasad Nayak, maybe it was under the sunlight, daylight, might be the ball is traveling out of the park. Because of the dew factor, ball is not having that much of weight. And that's why, see, look at that. The next delivery batsman picked up a single here quite easily by the new batsman here. Of course, Sharath Prabhu, he picked up a single. And with the single, scoreboard moves on to 27 for the loss of 3 wickets in the over number 5 in progress. Sharath Prabhu. This time, a chance of caught and ball, and Prasad Naik just missed out. Little bit tough chance, but that will going to be one more wicket here for Prasad Naik. Of course, he reacted very quickly for that catch. He has got extended his hand, but ball has having a little bit fingertips, and he couldn't manage to catch the ball in a second attempt. And outstanding over, Gopi. Prasad Naik once again proving himself why is the captain of Mumbai Paltans. Because of this, he is fantastic. When the team is required and breakthrough, he just came in and produced a breakthrough here.
बिल्कुल पार्टनरशिप ब्रेकर जिसे कहते हैं। और जब कभी भी ऐसे गेंदबाज को इस्तेमाल किया गया है, हमने देखा है क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा है, जब दोनों बैट्समैन सेट हुए रहते हैं तो रेगुलर बॉलर को हटाकर पार्ट टाइम बॉलर को वहां पर तैनात किया जाता है और वो पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल होते हैं। जैसा कि हमने कहा, अगर पार्टनरशिप ब्रेकर के बारे में अगर कहा जाए तो 80s डिकेड्स में मुदस्सर नजर ऑफ पाकिस्तान, जो कि द मैन विद द गोल्डन आर्म्स वो कहलाते थे। जब कभी भी जो भी साझेदारी बनती थी उन्हें गेंदबाजी पर लाया जाता था पार्ट टाइम बॉलर के रूप में, और वो विकेट वहां पर प्राप्त करते थे। K19MH 6361 ग्राउंडा भितर गाड्याला देखोर्नु ते आमगेले वॉलंटियर्स ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಅನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ देखोर्नु K19MH 63 तो छठा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ। ये गेंद पहली गेंद है, गेंद को खेल दिया इस वक्त, एक रन लॉन्ग ऑन पर मिलेगा। और जहां तक पार्टनरशिप ब्रेकर्स को पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए जो गेंदबाजों को इस्तेमाल किया जाता है पार्ट टाइम के तौर पर, काफी मौके पर काफी उदाहरणों में वो यश प्राप्त कर चुके हैं। अगर क्रिकेट के इतिहास के पन्ने को अगर पलट कर देखा जाए, और यहाँ पर प्रशांत नायक भी उसी तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए पार्टनरशिप ब्रेक कर चुके हैं। लेकिन शरत प्रभु यहाँ पर मौजूद, 102 रन 7 मैचेस 102 रन स्टिल स्कोर्ड एंड हाईएस्ट score of 50 and strike with a strike rate of 85, more than 85.13 I think so, हमारे कंप्यूटर स्कोरर बता रहे हैं 90.91। he scored 104 runs in 7 matches और उनकी उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है, उनके टीम के लिए कहना पड़ेगा। इस बार गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और जहां तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज अजय नायक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज वल्लंके मुल्की के इस वक्त बंधनों को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए, जस्ट ट्राइंग टू ब्रेकिंग द शैकल्स। और जहां तक सवाल है मुंबई पल्टन्स का, तो वो इस वक्त कोई ऐसा मौका उन्हें प्रदान नहीं कर रहे हैं कि उनके बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स यहां पर खेल सके, और खासकर ड्यू फैक्टर भी इस वक्त उन गेंदबाजों के काम इस वक्त आ रहा है। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, बेहतर गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए टिप्पा खाने के बाद आखिरी मौके पर, और बल्लेबाज रिवर्स शॉट खेलने में चौकी। ये देखिए किस तरह से गेंद को खेलना चाहा था, लेग कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, और बल्ले का कोई कांटेक्ट संपर्क नहीं, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा, एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, और पिछले गेंद के मुकाबले ये गेंद टॉस की गई थी। इस वक्त बल्लेबाज को ललचाया गया था कि वो स्ट्रोक्स खेल सके, लेकिन बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर खेलना मुनासिब समझा, फलस्वरूप गेंद उनके पहुंच से बाहर सीधे पहुंचे, घुमाव टर्न लेते हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। और इस वक्त अजय नायक एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और रनों के लिए कड़ा संघर्ष इस वक्त करते हुए बल्लेबाज, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर, गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान गेंद जब तक अपनी रफ्तार को खोने के बाद फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, रन्स आर स्टिल कमिंग इन सिंगल्स। और जहां तक स्कोर का सवाल है, स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और अजय नायक, ऐसा कहना पड़ेगा कंडीशंस, परिस्थिति का संपूर्ण लाभ यहां पर उठाते हुए, और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल सन्नाटे भरा माहौल मैदान पर छा चुका है, एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस ऑन द ग्राउंड। दर्शक खामोशी के साथ इस वक्त मैच का आनंद यहां पर लेते हुए, ये गेंद इस बार सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, बल्ले और पैर को एक साथ लाते हुए गेंद को ढकेला शॉर्ट कवर की दिशा में, 1 रन के लिए स्कोर बढ़कर 30 रनों पर पहुंच चुका। 6 ओवर की समाप्ति, एक्जैक्टली 5 रन पर ओवर, द प्रेजेंट रन रेट इज नॉट गोइंग ऑन हियर फॉर देम। और सतीश 2 ओवर का खेल बाकी, और मैं समझता हूं इन 2 ओवर में अब कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी वल्लंके फाइटर्स मुल्की के बल्लेबाजों को अपनानी होगी। Exactly, Gopi. They need to change the gear here on also because they got 7 wickets in hand, isn't it? And they only 2 overs remaining. That means 12 balls remaining, excluding wides and no balls. And we are mentioning about the target. The 50 plus is going to be a very good target to depend in this condition. And one of these 2 batsmen, Gopi, have to take a little bit risk in the sense calculated risk, because we already mentioned about this. This pitch is not that much of easy to bat on under the floodlight. So calculated risk in the means the placement and converting singles in the 2, pushing the ball in the gaps and here and there. That's
so important, Gopi, for Valalanke if they wanted to get 50 plus runs on the board in remaining 2 overs. Meanwhile, looks like it was a bowling change from Abharan Jewelers, and no change in fact, Prasad himself, of course, he was got a wicket in the previous over, so himself he thought that it might be my time to bowl another over. Wait and see how Prasad will go into produce a good over here for his team. Being the captain of the side, lot of responsibility in his shoulder, and Sharath Prabhu being the captain, lot of responsibility in his shoulder. He's got a bat in his hand, and Prasad has got a ball in his hand. The wait and see. Here is Prasad. Bowls to Prasad. Prasad a little bit making a room to play the inside out cricketing. So chance of run out there in the non-cycles, and but the ball, the throw is not that much quick enough to make the run out. But Sharath Prabhu always is a very good runner between the wicket. Not really missing the single opportunity to clinch the run, and he picked up a single. Scoreboard moves on to 31 for the loss of 3 wicket. What an atmosphere out here, Gopi. This is what we want to see in the big final, isn't it? Every time, not in the season 5, but all the season we can see it. All that brothers and sisters of GSP community really backing up this cricket tournament. This is the one of the success of this cricket tournament as well, isn't it? So back to this over. Prasad Nayak bowls right above the wicket. This time batsman drives on right in the gap. Vivek Prabhu in the delegation towards the long off. Sensible batting from these two batsmen in this situation. They wanted to rotate the strike. Of course, Sharath probably a little bit trying for some improvisation. But the Prasad Nayak is too clever. He's so experienced campaigner for the side of Mumbai Paltans, so know exactly what to do. Now Sharath Prabhu just wanted to check the quality of the ball. Well, it was hard enough to go for the big shot or not. And Prasad Nayak thinking about that, I'm not allowing you to settle for the big shot. Here is the next one. Batsman coming down the track. Let it make a run. Beautifully played. Right in the gap. Down to deep backward point region. Before the fielder formed the deep third man region to cut it off, the batsman got ample time to complete that couple of runs. Slower run, Gopi, but with his offered. And batsman has got a plenty of time to rock back and cuts that one right in the gap towards the deep backward point region. Because of outfield is not quick, the batsman have to settle for a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 34 for the loss of 3 wicket. And straight away the fielder from the short mid wicket just having a word with Prasad Nayak. Maybe he was just giving suggestion not to bowl a short pitch delivery to batsman like Sharath. And this time again, look at that one. He was pretty good in it. Using his feet, using his wrist, and picked up a single down to mid-on. One more addition to total. Scoreboard moves on to 35 for the loss of 3 wicket. All we can see that the fans of Valalanke Fighters, of course, being the locals, they have got a more supporters than the Mumbai Paltans. But when it was asked from the audience, spectators, we'll go into the favorites, but everybody thought that they wanted to see the big battle. That was a healthy battle between these two teams. And winning, losing is a part of cricket, but winning the heart of cricket lovers is always going to be key here. This time again, one more singles taken there by Vivek Prabhu, and the trying for the run out, the ball missed the stump. Batsman let be dealing with the luck. One more addition. Each and every run going to be very crucial, Gopi, in this condition. We cannot underestimate these singles. Even batsmen also knows that little bit frustration for both the batsmen that they're not able to get any big shot, but you cannot understand these singles as well. 36 for the loss of 3 wicket. Just seeing the result of previous 2 days under the floodlight, 45 plus is going to be a good score. This time, Sharath going for the reverse sweep. Appeal for caught behind, but umpire, look at the Rajaratna sir, is so experienced, know exactly what the intention of the bowler. He wanted to change the mind of the umpires not to give the wide ball, but umpire Rajaratna sir is so experienced. You know exactly what Prasad Nayak is asking for, but he is doing his duty. He signals a wide. One more addition to total, 37 for the loss of 3 wicket. Again cuts that one quite nicely, but not quite able to get more than a single for that. With that single, scoreboard moves on to 38 on the board. Little bit productive over Gopi, even though there is not that much of big shot, but they got each and every ball, they got a run, one couple run. That means 7 runs came from that over of Prasad Nayak. Altogether, completion of 7 overs. Valalanke Fighters are really fighting hard in this middle against Mumbai Paltans. They are 38 for the loss of 3 wicket. Now last over to go, Gopi. What do you think? How many runs they will going to be enough in the last over? एटलीस्ट 8 to 10 रन इन द लास्ट ओवर सतीश। और जहां तक सवाल है 8 से 10 रन भी बटोरते हैं तो उनका आंकड़ा 46 से 48 तक पहुंच सकता है, और रिक्वायर्ड रन रेट 6 पर पहुंच सकता है। अगर 48 तक उनका आंकड़ा पहुंचता है तो 8 ओवर में, तो 6 रन प्रति ओवर का औसत अंडर फ्लड लाइट्स
चेस करना उतना आसान नहीं है। पिछले दिनों में कल परसों हमने देखा अंडर फ्लाइट्स में बल्लेबाजों ने कितनी दिक्कतियों का सामना किया है रन बटोरने में। तो इस वजह से इस वक्त अंतिम ओवर ये मुद्दा ठहरता है कि वो कम से कम 8 से 10 रन यहाँ पर बटोरे और अपनी टीम को एक बेहतर एक चुनौती भरे स्कोर तक ले जाए। फिलहाल देखना यह है कि वो इस प्रयत्न में किस हद तक यश प्राप्त करते हैं। सचिन नायक इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे शरद प्रभु, जो कि शीट एंकर्स रोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए 16 रन जोड़ चुके हैं 16 गेंदों पर और कुल मिलाकर इस श्रृंखला में 110 रन वो जोड़ चुके हैं। इस गेंद को इस वक्त खेल दिया था, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम शरद प्रभु। और जहां तक सवाल है इस वक्त 111 रन अब तक वो जोड़ चुके हैं इस श्रृंखला में। ये गेंद इस बार गेंद को टक किया आखिरी मौके पर गेंद को इस वक्त खेलने के लिए 2 कदम आगे बढ़े जरूर, लेकिन गेंद की गति को पहचानते हुए गेंद को वहीं पर कट करना चाहा, लेकिन गेंद जस्ट गॉट इज बॉटम ऑफ द बैट एंड इट रनिंग डाउन टू अ शॉर्ट थर्ड द बैट्समैन गेट्स ओनली अ सिंगल फॉर द स्ट्रोक। देखिए रिप्ले में किस तरह से गेंद को इस वक्त उन्होंने खेला था और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को खेल दिया है, ऑफ द बैक फुट स्मैश किया था इस वक्त और इससे पहले के डीप एक्स्ट्रा कवर पर लंबा दौड़ लगाने के बाद को फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। निस्संदेह अंडर दिस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस शरद प्रभु की ये पारी बेहतरीन रहेगी सतीश, क्योंकि वो पारी के भागदौड़ को पूरी तरह संभाल चुके हैं और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, शीट एंकर रोल मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए अपनी टीम को एक सही मकाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हुए। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज फील्डर आते हुए डीप थर्ड मैन पर, लेकिन मैं नहीं समझता कि गेंद तक पहुंच पाएंगे और 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूरे कर चुका है। इससे पहले के टिप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया जाता और थ्रो किया जाता, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका 2रा रन प्राप्त करने का। जस्ट प्ले दैट वन विद ट्विस्टेड बैट, टॉप एज पर गेंद टकराई थी, लेकिन डीप थर्ड मैन पर जो फील्डर मौजूद थे काफी स्क्वायर और दौड़ लगाने के बावजूद वो गेंद तक नहीं पहुंच पाई। इस भी 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका। 21 of 19 डिलीवरीज। शरद प्रभु इज नाउ बैटिंग ऑन, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम हिम। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा और गेंद सीधे स्टंप्सों पर टकरा चुकी है और इसी के साथ फाइन इनिंग्स, इट्स अ कर्टेन फॉर द फाइन इनिंग्स ऑफ Sharad Prabhu. 21 of 20 deliveries and now he is out, bowled by Sachin Nayak for 20 and his marathon innings has been came to an end. अब अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी में और शरद प्रभु जो कि इस श्रृंखला के लीडिंग रन गेटर इस वक्त हो चुके हैं। 7 मैचेस उन्होंने खेले, 7 पारियों में 115 रन उन्होंने बनाए हैं केवल 86 गेंदों में और 50 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है। He scored, he played 7 matches and in 7 innings he scored 115 runs and he faced 86 balls, just 86 balls he faced and he scored 115 runs with the top score of exactly 50 और निस्संदेह बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस श्रृंखला में दे चुके हैं और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के खिताब के लिए प्रबल दावेदार खिलाड़ी वो यहां पर बन चुके हैं। और इस बीच ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर आते हुए 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचता हुआ, ओह दैट इज एन कोलिजन, दैट इज एन एब्सोल्युटली कोलिजन और स्ट्राइकर एंड पर इस बीच विकेट चटका चुके हैं और पारी की अंतिम गेंद पर वंस अगेन वी आर गोइंग टू द थर्ड अंपायर। तो यहां पर 1 रन पूरा हो चुका था, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन भी जोड़ा जाता है तो कम से कम 45 रन वो जोड़ सकता है और निस्संदेह मैं समझता हूं सतीश 5.5 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर चुनौती भरा साबित हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा रन भी यहां पर जुड़ता है, बल्लेबाज बचते हैं तो 46 पर रन पहुंचेगा और 46 को अगर नाप तोल कर देखा जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट तब बनेगा 5.75 रन प्रति ओवर और निस्संदेह यहां पर देखना यह कि इस निर्धार पर कितने रन यहां पर जुड़ते हैं और थर्ड अंपायर इस वक्त अपील को इस वक्त परखते हुए और इस बीच नॉट आउट का इशारा एंड द इनिंग्स इज अप, दे फिनिश विद 46 एंड नाउ द टारगेट इज 47
for Mumbai Paltans. And as far as the required run rate is concerned, just under 6 runs per over they have to score for victory. That means in exactly calculation, it's going to be 5.88 runs per over they have to score for victory. 47 they have to score out of 48 deliveries with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और मैं समझता हूँ सतीश, इन हालातों में, in these circumstances, it will be a competitive total in this ground. Exactly, Gopi. At last, it is a competitive total. What we are talking about, of course, the 50 that what we are talking about in the beginning of the innings, but maybe a little bit 4 runs lesser than what we are expecting. But 46, Gopi, it's definitely going to be a fighting total. And wait and see how well Mumbai Falcons will going to chase these runs to become the champion. But I will tell you, I will promise you, spectator will going to enjoy the second innings of Mumbai Falcons. There will be a great battle. There will be expecting some good battle between bat and ball in the second session. And before that innings will go into commence of Mumbai Paltans, I would like to call upon I would like to call upon Ajay Raj for the further explanation of the match in our national language. Indeed, thank you very much. Check. Hello, check. Hello, check. थैंक यू रेजी, बहुत बहुत धन्यवाद. ಪುತ್ತೂರು ಬಾಮಿ ಯಶವಂತ್ ಶೆಣೈ ಅನ್ನಿ नमस्कार. और शानदार क्रिकेट श्रृंखला जो कि समापन की ओर बढ़ रही है. फाइनल का ये मैच इस वक्त ऐसे दौर पर खड़ा है जहां पर कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है. मुंबई पल्टन्स और वड़ालंके फाइटर्स के बीच में ये संघर्ष निर्धारित 8 ओवर्स का, जिसमें टॉस जीतने के पश्चात वड़ालंके कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. और निर्धारित 8 ओवर्स में जैसा अभी कुछ देर पहले आपने देखा, शानदार प्रयास किया गया. 46 रन बटोरे गए. 47 रनों का लक्ष्य है. आइए दोनों बल्लेबाज जिस तरह से मैदान पर उतर चुके हैं, मुंबई पल्टन्स के खेल को आगे बढ़ाते हैं. स्ट्राइक एंड पर इस वक्त रमानी आ चुके हैं. सिद्धेश रमानी, चिराग शानबाग नॉन स्ट्राइक एंड पर. गेंद को लेकर अनंत शनाय तैयार हो रहे हैं. रात के लगभग 10:15 हो चुके हैं. दूसरी पारी की पहली गेंद दाएं से विकेट. बहुत अच्छी गेंद और चारों खाने चित कर गई और पहला आघात हुआ मुंबई पल्टन्स को. यॉर्कर लेंथ की गेंद थी. कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लिक करने का प्रयास किया, बॉल्ड हो गए.
थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल की गेंद आनंद शनाय, मानो आज वॉलंके की तरफ से एक ऐसे जादूगर गेंदबाज बनकर उभरे हैं। पहली गेंद पर उन्होंने एक ऐसे बल्लेबाज को चलता किया, बहुत जबरदस्त गेंद यॉर्कर लेंथ की थी। बैट्समैन थोड़ा सा बीट हो गए गेंद को फ्लिक करने के अंदाज में, जैसे ही उन्होंने कलाई को घुमाया गेंद थोड़ा सा जल्दी निकल गई, बल्ला बहुत देर से चला और जिसकी वजह से गेंद बल्ले के नीचे से निकलते हुए स्टंप्स पर जाकर गिरी और वो चमकीली गिल्लियां उड़ गई और उसी के साथ पहला आघात मुंबई पल्टन्स को हुआ। जीतेगा कौन? आइए उस कहावत से, उस कविता के 2 लाइन से मैं शुरू करता हूं कि जीतेगा वही जिसमें जीतने का जज्बा होता है और कंधों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हालांकि ये पिछले कई सालों से कहा जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कुछ प्रेरणा मिलती है क्योंकि आपका हौसला बढ़ता है और इसीलिए बार बार इसको कहना जरूरी है। पहले विकेट के तलाश के पश्चात, शिकार के पश्चात गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। आनंद शनाय की अगली गेंद इस छोर से ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, बीट कर गई बैट्समैन को, विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया। देखा कि बैट्समैन का पिछला पैर क्रीज से थोड़ा सा हवा में है, उन्होंने गेंद को उठाकर स्टंप्स की दिशा में थ्रो कर दिया। बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा स्विंग मिला इन स्विंगर की तरह से और बैट्समैन फ्रंट फुट पर गेंद के पिच तक पहुंचने का असफल प्रयास कर रहे थे। अगर पिच तक पहुंचना था तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा फॉरवर्ड और होना था, लेकिन पहुंच नहीं पाए और उस प्रयास में उनका पिछला पैर हवा में रह गया। विकेट कीपर ने जल्दी ही देखते हुए स्टंप्स उड़ाने का प्रयास किया। दूर वाले छोर से आनंद शनाय की अगली गेंद इस ओवर के, इस बार लंबाई ज्यादा थी, ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर, विकेट कीपर के दिशा में बहुत तेजी के साथ थ्रो हो चुका है। वो थ्रो के रूप में एक और रन लेने का मौका मिलेगा, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं। जब तक वो गेंद को उठा कर थ्रो कर पाए, जहां पर मात्र 1 रन मिल सकता था वो 2 में परिवर्तित हुआ। इन 2 रनों के साथ कुल योग अब बढ़कर पहुंच चुका है, जी हाँ, 2 रन कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर। आनंद शनाय बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये गेंद उनकी ऑफ स्टंप के कुछ ज्यादा बाहर थी। चिराग शानबाग और प्रसाद नायक की वो पारी भला कौन बोल सकता है। पिछले मैच में जो जबरदस्त 3 छक्के उन्होंने जड़े थे। ओवर द विकेट ये छोर से उल्टे हाथ से गेंद को खेल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन की दिशा में फील्डर गेंद को अंदर की तरफ ढकेल चुके हैं। बहुत कमाल का स्ट्रोक है, दूसरा रन पूरा कर लिया, तीसरा रन लेने का जो अवसर था उसका भी फायदा उठा लिया। 3 रन खाते में जोड़ लिए गए। इन 3 रनों के साथ कुल योग बढ़कर 5 पर पहुंच चुका है। लक्ष्य है 47 रनों का। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर वो बल्लेबाज आ चुका है जिसे चिराग शानबाग कहते हैं और मुंबई पल्टन्स के लिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं वो रोशनी वाला चिराग बन सकता है। अगर इस बार वो चल गया तो निश्चित तौर पर ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धीरज, धैर्य, संयम, पेशेंस जिसकी जरूरत है और हड़बड़ाहट में, दबाव में अगर कुछ खेला गया तो मैं समझता हूं कि गफलत हो सकती है। जबकि दूसरी ओर वॉलंके के फाइटर्स बिल्कुल फाइटर्स हैं, बहुत जबरदस्त प्रयास वो कर रहे हैं। आज आनंद शनाय की गेंद मानो नाक में दम कर रही है। ये गेंद बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, फील्डर की दिशा में गई, पहले प्रयास में गेंद को उठाकर थ्रो कर दे तो बात बन सकती थी, एक और विकेट चलता किया जा सकता था, प्रसाद नायक को भेजा जा सकता था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और फील्डर जो इनफील्ड में मौजूद थे तेजी के साथ गेंद को गैदर करने के प्रयास में थोड़ा सा गेंद उनके हाथों से छूट गई और बैट्समैन के पास अवसर मिला कि वो अपने राह में, अपने क्रीज की दिशा में पहुंच पाए। बहुत जल्दबाजी थी और मैं समझता हूं कि दोनों बैट्समैन को थोड़ा सा एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। उस भटके हुए आत्मविश्वास को एकत्रित करना जरूरी है। पटकी हुई गेंद पिछली जिसको बहुत खूबसूरती के साथ चिराग ने मोड़ दिया था। इस छोर से आभरण बैनर छोर से इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट, चिराग को आक्रामक तरीके से उछालना चाहते थे, रनआउट का मौका बनेगा और स्ट्राइक एंड जी नहीं, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हुआ, बाल बच गए। बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है। चिराग शानबाग जो कि इस ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर आती हुई गेंद को खेलने के लिए लाइन पर थोड़ा सा आना चाहते थे, ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर आ गए, गेंद को उछालने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, जो सीधी गेंद थी, बीट हो गए, शरीर से टकराई और फील्डर तेजी के साथ आए। इस बीच दोनों बैट्समैन हां ना कर रहे थे रन लेने के लिए और फिर बाल बच गए और ऐसे समय में मैं समझता हूं कि दबाव थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है बल्लेबाजों पर, जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन बॉल टू बॉल अगर रन बनता है
तो आसानी से लक्ष्य को पाया जा सकता है। पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 5, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जो कि शुरू होने जा रहा है और दूर वाले छोर से फजलना बैनर छोर से जबरदस्त क्रिकेट श्रृंखला बनाई गई है। देश विदेशों में इस श्रृंखला की प्रशंसा की जा रही है। बहुत जबरदस्त मैन ऑफ द सीरीज के लिए जिक्सन बाइक रखा गया है और आमगेलोटू भामी अशोक शणे सची हंकावा कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन आणि यूथ ऑफ जीएसबी तर्फेन वेदिकेक स्वागत करतस देखून तुम्ही वेदिकेर येऊन बैसकामण मी निमगून घेतस। धन्यवाद। कौशिक शनाई दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार हुए, उनकी गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, हवा में खेल दिया, फील्डर थे वहां पर, कैच का मौका बन सकता था लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, फील्डर की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि वो गेंद को गैदर करने में असफल रहे और एक मौका मिला बैट्समैन प्रसाद नायक को। भाग्य जब साथ देता है कभी कभार एक मौका जो निश्चित तौर पर टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कैचेस विंस द मैचेस, पकड़ो कैच जीत मैच कहावत है जो और मैच श्रृंखला में कहा जाता है और ये निश्चित तौर पर सही कहावत है। भाग्य का साथ दोबारा प्रसाद नायक को मिला, लेकिन क्या वो इस बार इस मौके का फायदा उठा सकते हैं? अब चिराग शानबाग स्ट्राइकर पर, चिराग नजरों को जमाने में लगे हुए हैं, जबकि दूर वाले छोर से कौशिक शनाई की गेंद तैयार हो गए, उनकी गेंद और दोबारा उसी अंदाज में खेलना चाहते हैं, घुमाकर ऑन साइड की दिशा में मिस कर गए और रन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। रन्स अभी भी वहीं पर स्थिर है, गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और कौशिक शनाई जानते हैं कि ऑन साइड पर बहुत मजबूती के साथ खेलते हैं बैट्समैन चिराग, इस वजह से उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के ज्यादा कर दिया और लगातार प्रयास में चिराग बीट हो रहे हैं। दोबारा ये गेंद मिस कर गए, गेंद पैरों से टकराई, रनआउट का मौका बनेगा और इस बार देखना है कि आखिर क्या हुआ है। गिल्लियां उड़ गई, अंपायर ने कहा कि अब भूमिका तीसरे अंपायर को निभानी होगी। आखिर उस नजदीकी मामले में क्या हुआ है? क्या बैट्समैन क्रीज से रह गए या क्रीज में पहुंच गए? बहुत निर्णायक बोर्ड है और रन अभी भी 6 पर और दिल की धड़कनों की जो अब आप सुन रहे हैं, मजाक ही सही लेकिन कहना चाहेंगे ये डीजे के दिल की धड़कन है। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये सह्याद्री इंजीनियरिंग महाविद्यालय माफ कीजिएगा, मैदान के बाहर जितने सारे डगआउट्स और स्टैंड्स बनाए गए हैं, दर्शक खचाखच भरे हुए हैं। जीपीएल का ये क्रिकेट महोत्सव जो कि एक ऐसा महोत्सव जिसमें आपको सारे एंटरटेनमेंट मिलेंगे, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, और बिल्कुल अलग अलग रंगों में बिखेरा गया है ये श्रृंखला और इस वजह से इस श्रृंखला को देश विदेशों में प्रशंसा मिल रही है। प्रसाद नायक और चिराग शानबाग क्या अपने टीम की लाज को बचा पाएंगे? मुंबई पल्टन्स जो इतने लंबे सफर में, थकान में, बैंगलोर आकर इस बार अंपायर ने संकेत किया कि नॉट आउट है, बैट्समैन बच गए, बाल बच गए और रन सभी भी जी नहीं, 7 पर 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। अभी समय मिलेगा और थोड़ा सा धीरज धरिए क्योंकि अभी विकेट नहीं गिरा है, बैट्समैन बच गए। 7 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। कौशिक शनाई तैयार हो रहे हैं, बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और मुल्की का हौसला बढ़ाते हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, विशेष रूप से कौशिक शनाई चिराग को जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। उस छोर से ये गेंद इस बार बार बीट हो रहे हैं दोनों बैट्समैन। प्रयास उनका है कि ऑन साइड पर प्लेसमेंट के साथ वो गेंद को घुमा कर खेलें, लेकिन उनके बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो बीट होते जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार ऐसे समय में थोड़ा सा धीरज धरना होता है, थोड़ा सा नजरों को जमाने के लिए डिफेंसिव बल्लेबाजी अपनानी होगी। दोबारा उसी प्रयास में लेग स्टंप के बाहर रही, इस बार अंपायर ने कहा कि यह गेंद वाइड हो सकती है। वाइड के इस रन के साथ रन बढ़कर 8 पर लेग स्टंप के बाहर जैसे ही गेंद निकलती है थोड़ा सा गेंदबाज को संभालना होगा क्योंकि निश्चित तौर पर वो वाइड करार दी जाती है। इस छोर से अगली गेंद इस बार खेलने के प्रयास में बल्ले का भीतरी अंदरूनी सिरा लेकर गेंद गई, लगभग
बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जहां पर फील्डर तैनात थे वो दौड़ कर गए, गेंद को उन्होंने उठा लिया, 1 रन पूरा हुआ, रन बढ़कर 9 पर, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, आकाश अंधेरों में डूबा हुआ है, जो नदी शांत, हालांकि थोड़ा सा उथल पुथल कर रही थी आज सुबह दोपहर तक, शाम तक, अब बिल्कुल शांत हो चुकी है, शीतल हवा बीच बीच में चलती हुई, और डगआउट में बैठे तमाम दर्शकों की धड़कनें बल्ले और गेंद से जुड़ी हुई है। ऐसे में चिराग शानबाग क्या थोड़ा सा धैर्य धरते हैं, क्या धीरज उनमें है, वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो शायद बात बन सकती है। और इस छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, जिसको अंपायर ने कहा कि वाइड के इस रन के साथ कुल योग बढ़कर 10 पर। दिमागी खेल है, क्रिकेट मात्र क्रिकेट नहीं है, चेस जिस तरह से खेला जाता है। कौशिक का ये पैतरा उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर कर दिया ताकि चिराग उसी अंदाज में बाहर निकलेंगे, लेकिन चिराग ने इस बार छोड़ दिया उस गेंद को और उस गेंद को वाइड करा दिया। इस बार बहुत अच्छी गेंद, चिराग ने भी बहुत जल्दी गेंद को पढ़ लिया, विकेटों के सामने थे, अगर बैट से मिस कर दे तो पैरों से टकराती, लेकिन बल्ले को साथ में ले आए और धीरे से पुश कर भर कर दिया, 1 रन पूरा हुआ। इसी के साथ ये दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 11 रन से 1 विकेट के नुकसान पर 47 रनों का लक्ष्य है। रन रेट जो रिक्वायर्ड है 6 का। और इससे पहले तीसरा ओवर शुरू माइक्रोफोन पर हमारे बहुत ही अनुभवी कमेंटेटर सुरेश भट्ट जी, जिन्होंने पिछले 5 साल से जीपीएल को अपना योगदान दिया है, और मैं उनका बड़ा आभारी हूं। हमेशा उन्होंने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया है। उनको मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वो कुछ ओवर्स को अपने शानदार शब्दों के साथ बयां करें। धन्यवाद। So thank you, Ajay. Hello and welcome back to this Sahyadri College ground. So good evening, everybody. This is Suresh Bhatt speaking the microphone. Welcome all of to this Sahyadri College Stadium here at Mangalore. So very interesting match is going on here between Volalanke Fighters of Mulki versus Mumbai Paltans. 36 balls remaining and 36 more runs required to win this match. So we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive Puzalana GSB Premier League 2021. So everything seems to be ready here. Anand Shana is ready to bowl the second over of his Kocha. Batsman gently pushes the ball to the offside. Tremendous shot over the extra cover. Crashing drive to the offside. Long chase for the fielder there. And before the fielder can pick it up and throws back to the wicket keeper, there is ample time for both these two batsmen to go for a couple of runs. So with those 2 runs, the scorecard of Mumbai Paltan slowly moves on to 13 with 1 wicket down. A very good partnership is going on here between Chirag Shanbag and Prasad Nayak. So Volalanke Fighters, Mulki, their bowlers must work very, very hard, and they need to break this partnership now in order to come back into this game. Once again, played elegantly to the long on region. There is a fielder, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. So single to the left-hander, Chirag Shanbag, he moves on to 4, and that single brings Prasad Nayak back on strike now. Prasad Nayak is a very good all-rounder of Mumbai Paltans, leading from the front, playing a sheet anchor role here. He's playing very sensibly. He's one of the pinch hitter of the side. He can hit the ball. He can smash the ball all around the ground. So Volalanke Fighters have to look for wickets now. They have to bowl perfectly straight to the wicket. If they can break this partnership, if they can pick up 1 or 2 wickets in this over, definitely they can change the whole complexion of the game now, and they can put the pressures on the batsmen of Mumbai Paltans. So let us see what strategy the bowler will adopt now. Direct and accuracy have to be given high priority here. The bowler continues from the Abrana Jewelers and bowls this one. Ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it, and he's out. That was a shot of line delivery. Batsman stepped out very quickly. Down the wicket he goes, but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands. He has lost his complete rhythm there. As a result, the ball was quite high in there for a while, and the man standing at mid-off region, making no mistake, caught it beautifully. A big blow for Mumbai Paltans. They have lost the vital wicket. Prasad Nayak departs.
33 balls remaining and another 33 more runs required. A very interesting match. This match is going to be a fast-hitting game, and I think it has a real close finish. So terrific atmosphere here today at Sahyadri College Ground. Crowd is more than expected. We can see some colorful banners, advertising boards all over the ground, and we are thankful to those who have supported and giving these kinds of banners. We are also thankful to our donors who made this tournament a grand success. We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. So successful bowler, Anand Shanai bowls this one. To the left-hander, gently pushes the ball to the offside region. There is a fielder, Suhas Prabhu. I think the fielder at Adesh is the fielder. He collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. So single to Chirag Shanbag. He moves on to 5, and the total scorecard of Mumbai Paltan slowly moves on to 15 with 2 wickets down. The last man out was Prasad Nayak, and the 2 batsmen in the middle are Ninad Borkar and Chirag Shanbag. So Ninad Borkar is the newcomer, come out to the center, taking guard from umpire, and he is ready to face Anand Shanai now. So as I mentioned earlier, the bowlers of Valaranke Fighters, they have to bowl with perfect discipline line. If they can pick up one more wicket, definitely the things will change. That's a very fine delivery, pitching right in the block. There could be a chance of run out. He has missed the stumps. If it is a direct hit, certainly the batsman would have been in trouble. Very, very lucky indeed. Fortunately, the batsman survives. Good piece of fielding there by the wicketkeeper, Sharath Prabhu. He collects it. He was very quick, and direct hits are always dangerous. So the batsman is safe, no damage done. One more run is added to the scorecard of Mumbai Paltans, which takes their full score to 16 for the loss of 2 wickets after 2.5 overs. So last delivery of the 3rd over. Here is the last delivery of the power play over. That ball keeping very, very low. That ball beats not only batsman, wicketkeeper collects it neatly. That's a very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, so no possibility of a run there. The ball pitching on the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicketkeeper Sharath Prabhu collects the ball neatly, and the rest of the job is done by the wicketkeeper. He returns the ball back to the bowler. End of the over number 3. So after the completion of 3 overs, it is 16 for 2. So Kodia Sports Association of Mangalore are organizing this wonderful cricket tournament here for GSB Samaja Bandhavas. 12 different teams have participated in this particular tournament, and now the winners of this tournament will fetch a cash prize with the attractive trophy, and at the same time, the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series, and man of the match. The man of the series player will be awarded with the attractive 2-wheeler Gixxer bike, which is being sponsored by Pi Sales of Mangalore. So 5 more overs to go now. 30 balls remaining, 31 more runs required to win this match for Mumbai Paltans. Sharath Prabhu is going to bowl now. He is the skipper, icon player of Valaranke Fighters. And whenever Sharath Prabhu comes in, something different will happen. So let us see what he's going to do now. Sharath Prabhu is ready to bowl from the far end, that is from the Puzalana end, with a short run-up. Right arm over the wicket passes the umpire. That's a very, very fine delivery which beats the batsman. And uneven balls there, flighted delivery, batsman beaten comprehensively. The batsman doesn't know much about delivery, he doesn't have any clue about that ball, misses it completely, and wicketkeeper collects the ball behind the stumps, and he returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is in the hands of the bowler, Sharath Prabhu, and he's on his way to the right-handed batsman. Crashing drive to the offside, lovely cover drive, long chase for the fielder there. Ball is rushing towards the boundary rope, but the outfield is not quite good enough. Meanwhile, the fielder runs across and stops the ball. Otherwise, the ball would have been crossed the boundary ropes here. Good piece of fielding by the fielder. That was a room outside the off stump, and batsman played their shot, crashed away nicely through the covers. So a couple of runs have been added to the total of Mumbai Paltans, and at the moment, they are 18 for the loss of 2 wickets. 4th over is in progress. So we are in the 4th over of the innings. Power play is completed. Field has been spread out now. Again, TSC down to 3rd man region, down to gully fielder. There is a fielder.
He collects the ball, but before the fielder collects the ball, these two batsmen have ample through for a cheeky single here. Good running between the wicket here, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So 28 more runs required in the remaining 27 balls. What an interesting match in this great finals of Puzalana GPL 2021. Youth of GSB is hosting the live broadcast of this tournament, so people from all corners of the world can view the GPL tournament. So we are in the final day of this tournament now. So Sharath Prabhu is making some change in the field placement here. 3 runs so far in this over for the 4th time. This time he will be coming round the wicket. There could be a chance of run out, and the fielder fumbles. He was not in a position to gather the ball properly. Meanwhile, the batsman was very quick and he gets a single here. So single to the left-hander Chirag Shanberg. He's the opener batsman playing sensibly. He's still there and he knows how important is his knock. Because Prasad Nayak is already back in the pavilion. So Chirag Shanberg is keep rotating the strike. He's not going for any unnecessary hits. That's a good thinking by him. This time ball is in the air. There is a fielder underneath it. And Vivek, making no mistake, caught it beautifully. He kept his eyes on the ball. What a good presence of mind. And you can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. Mumbai Paltans are in deep, deep trouble now. They have lost another vital wicket. So great comeback by the players of Vadalanke Fighters. Sharath Prabhu, the skipper, has given the breakthrough what they were looking for. Partnership has been broken, and he was the most successful bowler there by picking up that important wicket of Ninad Borkar, who was caught by Vivek Prabhu in the long on region. That ball was very, very high in the air. It's not an easy catch because especially when you are looking at floodlights, it is very difficult to judge these kinds of catches. But really a good presence of mind from the fielder Vivek Ambagilu Kocha. He caught it beautifully. That's an amazing catch. And it is 20 runs on the scoreboard for Mumbai Paltans now after losing the 3rd wicket of Ninad Borkar. The new batsman now joining is Rajiv Kamath. He's at the non-striker's end. He has to play with full responsibility now. So Chirag is doing right job at the moment. He gently pushes the ball to the onside. Perfect placement there. He finds the gap. And meanwhile, he was very quick, aggressive running between the wicket here. End of the over number 4. So after 4 overs, it is 21 runs on the scoreboard for Mumbai Paltans. That means 4 more overs to go now, 24 balls remaining, and 26 more runs required. Let us see what is going to happen now. Changing the bowling position here. Meantime, changing the commentary position also. And for further commentary, I would like to hand over the microphone to Ajay Raj to proceed in our national language. That will be in Hindi. Thank you very much. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भट्ट जी। और क्या बात है, आज वडालंके फाइटर्स बिल्कुल जुझारू दिखाई पड़ रहे हैं, जीत का स्वाद चखना चाहते हैं, कमाल की गेंदबाजी क्षेत्ररक्षण दिखाई पड़ रहा है। और पल्टन्स कहीं ना कहीं उस गलती पर दोबारा दोहरा रहा है, जो गलती पिछले 2 बल्लेबाजों ने की है उसी गलती को दोहरा रहा है। और मैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए उदाहरण के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण दूंगा कि किस तरह से वो पहले सिंगल्स पटोरते हैं, थोड़ा सा डिफेंस करते हैं और फिर बात वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पर आपके पास एक शानदार भोजन तैयार हो, यानी कि जीत का स्वाद चखने के लिए तैयार। और ऐसे में एक तरफ से चिराग इस बात को समझ चुके हैं, जबकि वडालंके की तरफ से दीपक के आ चुके हैं। उनकी गेंद राउंड विकेट स्टंप्स के लाइन पर थी। क्या बात है, बहुत अच्छी गेंद
बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में जाती हुई और उसको बैट्समैन ने फ्रंट फुट पर थोड़ा सा धीरे पुश भर कर दिया। फ्रंट फुट पर फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक था। एक रन चुराकर अपने साथीदार राजीव कामत को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। रन्स बढ़कर 22 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। रनों और गेंदों के बीच में कुछ ज्यादा फासला नहीं है और इसलिए मैं समझता हूं कि बल्लेबाजों को थोड़ा सा संयम धरने की आवश्यकता है। जबकि दूसरी ओर वड़ालंग के फाइटर्स को मैं कहूंगा कि जिस तरह से वो आक्रमण कर रहे हैं उसमें क्षेत्रक्षण में थोड़ा सा नजदीकी खिलाड़ी अगर ज्यादा हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। सिंगल्स नहीं बटोर पाएंगे तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। ऐसे में क्या योजना कप्तान बनाते हैं ये देखने वाली बात होगी। राजीव कामत स्ट्राइक एंड पर, इस छोर से दीपक के की गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई बैट्समैन को और फील्डर ने गेंद को उठा लिया। जिस तरह से लेग कटर होती है उस अंदाज में गेंद को थोड़ा सा फ्लाइट दिया था दीपक ने और फ्लाइटेड गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत तेजी के साथ निकल रही थी। उसको खेलने के प्रयास में बैट्समैन बीट हो गए लेकिन एक रन लेग बाय के रूप में चुरा लिया गया। 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। दीपक के जैसे गेंदबाज को मुल्की के वल्लंग के टीम के कप्तान ने जानबूझकर ऐसे समय पर आक्रमण पर मोर्चे पर लगाया है जहां पर 3 विकेट गिर चुके हो और बैट्समैन थोड़े से दबाव में। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन क्या अंपायर इस गेंद को वाइड करार देंगे? जी हां, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, बैट्समैन को छकाती हुई गई, फ्लाइट थी, फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ निकली लेकिन जो दिशा उन्होंने पकड़ी थी वो कुछ ज्यादा बाहर थी। हालांकि गेंदबाज भी खुश नहीं है, विकेट कीपर भी थोड़े से परेशान हैं, लेकिन अंपायर जो हमने चुने हैं निश्चित तौर पर वो बहुत ही वरीयता प्राप्त है, उच्च कोटि के जिसे कहते हैं, जो अभी तक उन्होंने अपने अंपायरिंग को 100% अंजाम दिया है। गेंद को लेकर दीपक तैयार हुए, उनकी गेंद राउंड द विकेट, इस बार पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हुए बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के बाहर क्यों नहीं जा सकता गेंद। 4 रनों के लिए आभरण का शानदार चौका। थैंक यू डीजे, थैंक यू। क्या कमाल का स्ट्रोक है। चिराग, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा धीरज धरने के पश्चात इंतजार करने के ऐसी गेंद उनको मिल जाए जिस पर वो प्रहार कर सकते हैं। फ्लाइटेड गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाते उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ स्ट्रोक के पीछे बहुत ज्यादा ताकत लगा दिया क्योंकि वो जानते हैं कि आउटफील्ड में गेंद काफी धीमा पड़ता है। इस बार गेंद को धीरे से पुश कर बार कर दिया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, सेंसिबल बैटिंग जिसे कहते हैं, धीरे से पुश कर दिया और 1 रन चुराकर अपने साथीदार को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। रन्स बढ़कर 29 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। मुझे लगता है कि चिराग को अपने साथीदार को भी इस पैतरे को समझाना होगा और वही कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से 2 शब्द अपने साथीदार राजीव कामत के कान में डाल दिए और दीपक इस छोर पर आभरण बैनर छोर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हैं। दुबला पतला शरीर है दीपक का और गेंद को जिस अंदाज में गेंद करते हैं ऐसा लग रहा है कि हवा में गेंद ड्रिफ्ट होती है। और इस छोर से उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को और कमाल की गेंद है। थोड़ा सा बाहर निकले, गेंद को परख नहीं पाए, गेंद में लंबाई ज्यादा थी और बाल बच गए। अगर गेंद टप्पा खाकर स्टंप्स के लाइन पर आती तो बिगड़ सकता था और इस बार गेंद टप्पा खाकर कुछ ज्यादा ऊंची उठी और चिराग ने आकर अपने साथीदार को दोबारा समझा दिया कि इस वक्त उनको चिराग दीपक की गेंदबाजी को किस तरह से खेलना होगा। राउंड विकेट, उस छोर से गेंद इस बार थोड़ा सा स्कूप के अंदाज में गेंद को लॉफ्ट कर दिया। अच्छा स्ट्रोक है, बढ़िया स्ट्रोक है, 1 रन लेने का अवसर मिलेगा लेकिन थोड़ा सा जोखिम भरा था क्योंकि फील्डर अगर वहां पर तैनात होते तो कैच की संभावना बन सकती थी। ओवर समाप्त हो चुका है और कुल मिलाकर 5 ओवर के समाप्ति पर 30 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अब चिराग की उस शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मैं समझता हूं कि मुंबई पल्टन्स धीरे धीरे अपनी गाड़ी को पटरी पर ले आ रहा है। और दूसरी ओर चिंता का विषय इस वक्त मुल्क की फाइटर्स की ओर से है। वड़ालंग के फाइटर्स के कप्तान को थोड़ा सा सोचना होगा कि जमे हुए बैट्समैन चिराग, अगर उनको चिराग का विकेट मिलता है तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है और इस यादगार क्रिकेट श्रृंखला को जीतने का श्रेय उनको जा सकता है। और ऐसे में क्या योजना बनाते हैं देखने वाली बहुत ही होगी। कप्तान मुल्क के फाइटर्स के शरद प्रभु आक्रमण पर आ रहे हैं, कमाल के ऑलराउंडर माने जाते हैं
और शरद प्रभु के लिए एक शानदार सुनहरा पुरस्कार है। 2 विकेट्स अगर वो प्राप्त करते हैं तो 2000 नगद पुरस्कार 2000 नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा। नगद पुरस्कार दिया जाएगा और वो उनके क्रेजी फैन में से एक हैं सुरेश भट्ट जी, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दूर वाले छोर से शरद प्रभु गेंद को लेकर तैयार हुए और उनकी गेंद फुल टॉस बनाकर गेंद को खेल दिया, पुश भर कर दिया, सीधा स्ट्रोक खेला था और थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, जिसको देखते हुए बैट्समैन रन चुराने के लिए थोड़ा सा कदमों को आगे बढ़ा चुके थे, लेकिन फिर अपने आप पर संतुलन पाया और खतरे की आशंका से अपने बढ़ते हुए कदमों को खींच लिया। मात्र 1 रन से खुश होना पड़ा 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शरद प्रभु को अवसर है, 2 विकेट्स अगर वो प्राप्त करते हैं तो नगद पुरस्कार 2000 उनको दिए जाएंगे। और चिराग शानबाग इस छोर पर तैयार हैं, वो रोशनी का चिराग जो मुंबई पल्टन्स को कहीं ना कहीं उजागर कर सकता है, उजाले में ले आ सकता है। एक छोर पर वो तैयार हो रहे हैं, बार बार मिट्टी से अपने हाथ के पसीने को दूर कर रहे हैं। बहुत दबाव इस वक्त है, लेकिन वो संभल रहे हैं क्योंकि अब 31 रन बनने के पश्चात थोड़ा सा दबाव हल्का सा कम हो चुका है। शरद प्रभु गेंद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से, उनकी गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जिसको धीरे से पुश कर दिया, हाफ वॉली पर लिया, ताकतवर स्ट्रोक नहीं खेला। जानते थे कि फील्डर थोड़ा सा स्क्वायर खड़ा है, इत्मीनान के साथ खेलते हुए अपने साथीदार को उन्होंने बुलाकर 1 रन को पूरा कर लिया, जबकि उनका व्यक्तिगत योग बढ़कर पहुंच चुका है 14 पर 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया। कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो परिस्थिति में ढल जाते हैं और यही चिराग इस वक्त कर रहे हैं। परिस्थिति की जो मांग है उसके अनुकूल, उसके अनुसार वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने साथीदार को समझा चुके हैं। जबकि दूसरी ओर फाइटर्स वललंके विकेटों की तलाश में इस बार गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता था, बिल्कुल कैच का मौका था, लेकिन हाथ से छूट गया ये मौका। इस मौके को गंवाने पर वो जरूर पछता रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा एक बार जो हो चुका वो हो गया। उसके बाद अगर उस बात को आप मन में रखेंगे तो दबाव बढ़ेगा। वैसे भी फ्लडलाइट की रोशनी जो आंखों में चुभती है इतना असर नहीं है, लेकिन मौके जो बनते हैं उसका फायदा उठाना चाहिए। ऐसे में राजीव कामत का विकेट अगर गिर जाता तो दबाव और बढ़ सकता था। राजीव कामत थोड़ा सा लफ करके गेंद को खेलना चाहते थे, कैच का मौका गवा दिया। अब चिराग शानबाग स्ट्राइक एंड पर हैं, दूर दूर कैमरास में आप देख रहे हैं दर्शक झूमते हुए नाचते दिखाई पड़ रहे हैं। चिराग शानबाग क्या कर पाते हैं? दूर वाले छोर से शरद प्रभु की गेंद इस बार मिडलर लेग स्टंप के लाइन पर थी, बहुत खूबसूरती के साथ कलाई का उपयोग किया, फुटवर्क बहुत अच्छा है उनका, जल्दी ही गेंद के ऊपर आ जाते हैं, कदमों के सहारे से गेंद को धीरे से उन्होंने फ्लिक कर दिया ऑन साइड की दिशा में, 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया। कौन कह सकता है कि चिराग कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं है? बिल्कुल उनके कदम उस तरह से थरथरा रहे हैं, माफ कीजिएगा, इधर उधर चल रहे हैं गेंद को देखते हुए, और कलाई का उपयोग बहुत बेमिसाल है। इस छोर से ये गेंद इस बार थोड़ा सा फॉरवर्ड डिफेंसिव खेलने के अंदाज में गेंद को दबा दिया, जब तक पॉइंट क्षेत्र में फील्डर आकर गेंद को उठा लेते। 1 रन पूरा कर चुके हैं बैट्समैन, कुल योग 35 पर 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि ये 6ठा ओवर इस वक्त प्रगति पर है। आखिरी गेंद इस ओवर में शेष बचा है और शरद प्रभु जो कि इस टीम के कप्तान हैं, 50 रन एक मात्र ऐसा बल्लेबाज जिसने श्रृंखला में कीर्तिमान बनाया, रिकॉर्ड बनाया, और वो थे शरद प्रभु, जिन्होंने इस पूरी श्रृंखला में सर्वाधिक 50 रन बनाए। बहुत धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने की और अब प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसी गेंदें वो करे जिससे कि बैट्समैन को वो परास्त कर सके। उस सोच चाहिए गेंद चिराग के लिए, चिराग ने गेंद को हवा में खेल दिया, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, दूसरा रन चुराना चाहते हैं और जोखिम भरे रन को पूरा कर लिया साथीदार ने। राजीव कामत जो डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे, थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन था, बाल बच गए, दूसरा रन पूरा हुआ। चिराग शानबाग ने जिस तरह से हवा में गेंद को थोड़ा स्कूप किया था, ऐसा लगा कि कैच है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किया था क्योंकि वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। 2 रन के साथ ये 6ठा ओवर समाप्त हो चुका है। 6 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या बात है! दर्शक जो कि इस वक्त स्तब्ध हैं, बीच बीच में हर्षोल्लास सुनाई दे पड़ रहा है। कौन जीतेगा इस होड़ में लगे हुए हैं
और अक्सर मैं यही कहता हूं कि आने वाला समय भविष्य के गर्भ की बात जिसे कहते हैं, वो जो समय आएगा तब आपके सामने वो फजल होना जीपीएल उत्सव 2021 का विजेता, इस साल का चैंपियन आपके सामने आ सकता है। कौन हो सकता है? क्या मुंबई पल्टन्स या फिर वॉलरलैंड के फाइटर्स मुल्की? दोनों टीमों में वो तमाम खूबियां हैं, वो सारी प्रतिभा है कि वो जीत के हकदार बन सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस कसौटी से गुजर रहे हैं कि कहना मुश्किल है कि कौन जीत पाएगा। एक छोर पर शरद प्रभु जो कि टीम के कप्तान हैं, अपने टीम को वो बहुत समझदारी से हैंडल कर रहे हैं। बार बार गेंदबाजी का जो चयन है वो बहुत बारीकी से ध्यान देते हुए कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो चिराग शानबाग संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, राजीव कामत उनका साथ दे रहे हैं। चिराग ने 17 रन बनाए 17 गेंदों में, राजीव ने 4 रन बनाए 6 गेंदों का सामना करने के पश्चात। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। डीजे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले, कुछ ऐसे चौके छक्के या फिर विकेट्स का गिरने पर जो उनको धुन बजाने का मौका मिलता है। लेकिन इस वक्त दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि अगर आक्रामक स्ट्रोक खेला गया, विकेट गिर गया, और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि दिन के उजाले का खेल बिल्कुल अलग होता है, फ्लडलाइट्स की रोशनी में, और उसके अलावा धुंध जो पड़ती है उसमें खेल अलग होता है। नमी की वजह से वो स्ट्रोक जो दिन के उजाले में खेले जाते हैं वो नहीं खेला जा रहा है। और ऐसे में क्या कुछ होता है, चिराग नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, उनके साथीदार राजीव कामत स्ट्राइक एंड पर हैं। 1 और 11 की कहावत को वो साबित करने जा रहे हैं। और विकेटों की तलाश में इस बार शरद प्रभु ने आक्रमण पर दीपक के को लगाया है, जो अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं लंबी दौड़ के साथ। और आभरण बैनर छोर से उनकी गेंद फुल टॉस बनाकर, और कैच हो सकता था, जी नहीं, फील्डर के ऊपर से गेंद निकल गई। 1 रन लेने का अवसर प्राप्त हुआ। 1 रन के साथ जोखिम भरा स्ट्रोक था। दीपक बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी है। जिस तरह से वो दौड़ते हैं ऐसा लगता है कि कोई पेस रफ्तार वाला मध्यम तेज रफ्तार का गेंदबाज गेंद कर रहा हो, लेकिन वो गेंद को अचानक धीमा छोड़ देते हैं। जिस तरह से स्पिनर गेंदबाजी करता है, थोड़ा सा देर में विलंब से वो गेंद को रिलीज करते हैं और गेंद थोड़ा सा हवा में फ्लाइट होकर निकल रही है, जिसकी वजह से बैट्समैन परेशानी में थोड़ा सा उनको चेक करना पड़ रहा है कि गेंद फुल टॉस सही है या फिर बल्ले पर आ रही है। 9 रनों की दरकार, 11 गेंदें शेष बची हैं। क्या बात है, एक छोर पर चिराग स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, दीपक के गेंद को लेकर तैयार हैं। 9 रनों की दरकार, 11 गेंदों में क्या होगा। मिट्टी को बार बार रगड़ रहे हैं, क्यों न हो, पसीना ज्यादा बह रहा है क्योंकि फ्लडलाइट्स की रोशनी में पसीने भी बहते हैं। इस छोर से ये गेंद दीपक आभरण बैनर छोर से तैयार हुए, उनकी गेंद राउंड विकेट। इस बार गेंद को धीरे से उसी अंदाज में आगे निकलते हुए पुश कर दिया है और फील्डर इससे पहले आकर गेंद को उठा लेते। 1 रन पूरा हो चुका है, इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 39 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। 39 for 3, 8 रनों की दरकार है, 10 गेंदें शेष बची हैं। जो तमाम दर्शक इस वक्त मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त वॉलरलैंड के फाइटर्स और मुंबई पल्टन्स के चाहने वाले निश्चित तौर पर उनके हाथों की उंगलियां मुंह में होंगी और वो नाखूनों को चबा रहे होंगे। रोमांच की चरम सीमा पर ये खेल चल रहा है। कौन जीतेगा, कौन बनेगा वो जीपीएल फजल जीपीएल उत्सव 2021 का विजेता। बहुत संघर्षपूर्ण मैच देखने को मिल रहा है। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर राजीव कामत है, दीपक एक गेंद को लेकर लंबी दौड़ के साथ तैयार हुए। ऑफ साइड पर लगभग शॉर्ट थर्ड मैन है, पॉइंट पर एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर है। कवर नजदीक है, एक्स्ट्रा कवर बहुत नजदीक, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर जिसे कहते हैं। इस छोर से ओवर द विकेट, गेंद को धीरे से पुश कर दिया, फील्डर गेंद के ऊपर आ गए, लेकिन नाक के नीचे से रन निकालना इसे कहते हैं। जबरदस्त रनिंग है और राजीव कामत और चिराग शानबाग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग चल रही है बहुत बेमिसाल है। उन्होंने साथीदार को बुला लिया। रात में उड़ता हुआ पंछी जिसे ड्रोन कह सकते हैं हम, जो मैदान के सारे चारों ओर घूम रहा है और जीपीएल के उन तमाम जीएसपी परिवार को कैप्चर कर रहा है अपने कैमरास में कैप्चर करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक छोर पर दीपक दोबारा तैयार हो रहे हैं, उनकी गेंद आवरण छोर से पहले वो राउंड विकेट कर रहे थे, अब ओवर द विकेट करने में जी हाँ वो कर रहे हैं और थोड़ा सा रनअप लेकर वो दोबारा रुक गए। शायद एकाग्रता कहीं ना कहीं भंग हुई, दोबारा एकाग्रित होकर
वो तैयार हो रहे हैं। आपने छोड़ से उनकी गेंदों विकेट चिराग को, इस बार चिराग ने इस गेंद को थोड़ा सा स्कूप करने का प्रयास किया, थ्रो विकेट पर गिराया, रन आउट का मौका हो सकता है, गिल्लियां उड़ गई, लेकिन इसके बावजूद एक रन पूरा हुआ। अचानक खेल कहां पर ट्विस्ट हुआ, गिरगिट की तरह रंग कैसे बदल रहा है। क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा होता है। बहुत जबरदस्त खेल देखने को मिला आपको। दोबारा विश्लेषण कर दूं, चिराग को गेंद जो दीपक ने की थी, ऐसा लगा कि फ्लाइटेड है और चिराग थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए कि वो गेंद को फ्रंट फुट पर खेले या बैक फुट पर। थोड़ा सा इंतजार उन्होंने अंतिम समय पर किया। गेंद टप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछल कर आई, उसको कवर नहीं कर पाए। स्कूप करना चाहते थे, विकेट कीपर की दिशा में गई, विकेट कीपर संभाल नहीं पाए और एक रन चुराने के प्रयास में चिराग नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए, लेकिन उस प्रयास में गिल्लियां उड़ गई, बैट्समैन सुरक्षित हो गए। और दोबारा जब थ्रो आया तो गिल्लियां नीचे गिर चुकी थी और जैसा आप जानते हैं नियम के अनुसार गेंद को गैदर करते हुए स्टंप्स को उखाड़ना होता है, लेकिन इतना समय नहीं था विकेट कीपर के पास क्योंकि बैट्समैन राजीव कामत स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके थे। इस छोर से दीपक की अगली गेंद दाएं से ओवर द विकेट इस बार, और बहुत सोच विचार करते हुए थोड़ा सा इंतजार किया बैट्समैन राजीव कामत ने। वो जानते हैं कि उनकी थोड़ी सी जल्दबाजी कहीं ना कहीं गफलत पैदा कर सकती है। उन्होंने थोड़ा सा इंतजार किया। ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी, 6 रनों की दरकार है, 7 गेंदें बची हैं शेष, और ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर निकलती हुई गेंद को अंतिम समय तक वो खेलने के प्रयास में थोड़ा सा देखते रह गए। चिराग बार बार आ रहे हैं अपने साथीदार को समझाने के लिए कि अपने संयम को नहीं खोना है, और बहुत लाजवाब खेल चल रहा है। इस छोर से गेंद को लेकर दीपक क्या योजना बनाते हैं, उनके तरकश में कौन साथी रहे। ये गेंद इस बार स्कूप कर दिया, गेंद को हवा में कैच हो सकता है, लेकिन क्या इस गेंद को कोई कैच कर सकता है। फील्डर नजदीक खड़े हैं, जब तक वो गेंद तक पहुंच पाए डीप में गेंद का पीछा करते हुए 2 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। इन 2 रनों के साथ कुल योग बढ़कर 4 पर पहुंच चुका है। 4 रन, माफ कीजिएगा, 43 पर पहुंच चुका है। 4 रनों की दरकार है, 6 गेंदें शेष बची हैं। रोमांच से भरा हुआ खेल कश्मकश के दौर से गुजर रहा है और वड़ालंके फाइटर्स इस वक्त दबाव की स्थिति में, आखिरी 6 गेंदों में 4 रनों की दरकार है। क्या होगा एक छोर पर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, चिराग अगर थोड़ा सा धीरज नहीं धरते तो मैं समझता हूं कि यह बात नहीं बन सकती थी। चिराग ने आज बहुत सहनशील होकर, बहुत धैर्य के साथ एक बहुत जबरदस्त पारी खेली है, और मैं कहूंगा, दोबारा उसी शब्दों को दोहराऊंगा कि वो आज मुंबई पल्टन्स के उस शानदार बल्लेबाज की तरह उभर रहे हैं जो मुंबई पल्टन्स को रोशनी दे रहा है। बिल्कुल वो चिराग बनकर आज उन्होंने पारी खेली है। ट्रम्प कार्ड वो बन चुके हैं, लेकिन अभी खेल बाकी है क्योंकि 4 रनों की दरकार है, 6 गेंदें बची हैं। अभी मुंबई पल्टन्स के सामने ये चुनौती है और वड़ालंके फाइटर्स शरद प्रभु इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर शेष बचा है और मैं कहूंगा दोनों टीमों से कि युद्ध की तरह लड़ना है, लेकिन जब कोई एक टीम हार जाता है तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार जीएसबी परिवार की जीत होगी, जीपीएल की जीत होगी, और जीएसबी की यह श्रृंखला इसी सोच में, इसी सपने को साकार करने के लिए बनाई है कि देश विदेश में जितने भी जीएसबी समाज के लोग हैं उनको एक सूत्र में बांधा जाए, और इसी प्रयास में श्रृंखला की रचना की गई और बहुत सफल शानदार क्रिकेट श्रृंखला है। आइए इस आखिरी ओवर की ओर बढ़ते हैं और खेल के टेम्पो को थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं। चिराग शानबाग स्ट्राइक एंड पर हैं। आज वो बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, परिस्थिति के अनुकूल। दूर छोर पर आदेश भट्ट गेंद को लेकर आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त गेंदबाज हैं। राउंड विकेट, बैकफुट पर गए, पंच किया, फील्डर की दिशा में गई, नॉन स्ट्राइक की दिशा में थ्रो आया, गिल्लियों को उड़ा दिया गया है। अंपायर ने उंगली को उठाया और कहा कि बैट्समैन आउट हो गए। इसी के साथ आखिरकार एक ऐसा विकेट जिसकी तलाश थी वो गिर गया है। बैट्समैन आउट होकर लौट रहे हैं, राजीव आउट होकर लौट गए, ब्रेक थ्रू मिल गया। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और फाइटर्स जो आसानी से कभी हार नहीं मानते हैं, और शरद प्रभु
उस धोनी की भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, धोनी उस सारे दबाव को अपने अंदर सोख लेते हैं और उस प्रेशर कुकर की तरह बनते हैं। चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं होता है, लेकिन जब खाना पक जाता है तो सीटी बजती है और शरद प्रभु उस भूमिका को अदा कर रहे हैं। इस बार विकेट प्राप्त हुआ, ब्रेक थ्रू मिल गया और प्रतीक प्रभु जो कि चिराग शानबाग का साथ देने के लिए मैदान पर पहुंच चुके हैं। 4 रनों की दरकार, 5 गेंदें शेष बची हैं और ऐसे में क्या होगा? बहुत जबरदस्त खेल चलता हुआ और कहावत है कि न वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। और ऐसे में क्या कुछ होता है, चिराग एक छोर पर, दोनों बैट्समैन बाएं हाथ के बैट्समैन है और दूर वाले छोर से आदेश भट्ट गेंद को लेकर तैयार होने। 5 गेंदों में 4 रनों की दरकार है। उनकी गेंद फजलुल्लाह बैनर छोर से जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार विकेटों को कवर किया, गेंद को धीरे से पुश कर दिया, दोबारा रन आउट का मौका बन सकता है, लेकिन चिराग ने बहुत तेजी के साथ दौड़ लगाई। जिस तरह से किसी हिरन के पीछे कोई शेर दौड़ता है और हिरन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाता है तेजी के साथ, हवा से बातें करता हुआ, उस अंदाज में चिराग ने दौड़ लगाई और रेस को वो जीत गए। 1 रन उन्होंने पूरा कर लिया और अब हालांकि प्रतीक डेंजर एंड की ओर दौड़ रहे थे। चिराग स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके हैं। 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ अब आपको इक्वेशन बता दें, 3 रनों की दरकार है, 4 गेंदें शेष बची हैं। फील्डर्स कप्तान आपस में मिल गए हैं और कोई जबरदस्त योजना वो बना रहे हैं। इन फील्ड में अगर आप क्षेत्ररक्षकों को थोड़ा और नजदीक ले आए, चक्रव्यूह बनाएं, तो रच सिंगल्स को बटोरना मुश्किल हो जाएगा और यही शायद योजना बनाई जा रही है। लेकिन क्या ये योजना सफल होगी? 3 रनों की दरकार है, 4 गेंदें शेष बची हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त चिराग हैं, प्रतीक प्रभु नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। चिराग 19 रन बना चुके हैं 20 गेंदों का सामना करने के पश्चात और वो सामना करने के लिए तैयार हुए। दूर छोर से गेंद इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया, बहुत कमाल का स्ट्रोक है। दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रहे हैं। मिड विकेट क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, आउटफील्ड में इनफील्ड के फील्डर को दौड़कर फील्ड करना पड़ा और इस दौरान 2 रन खाते में जोड़ लिए गए। रन बराबरी पर पहुंच चुका है। अब मुंबई पल्टन्स को जीतने के लिए मात्र 1 रन की दरकार है। क्या अभी कुछ जादू बाकी है? अभी कुछ मिरेकल हो सकता है? क्या शरद प्रभु अपने गेंदबाज को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जो वड़ालंग के फाइटर्स को निश्चित तौर पर जुझारू साबित कर सकता है, आखिरी दम तक जो लड़ने की क्षमता रखते हैं? क्या जबरदस्त मैच है। नाखून कुछ बचे हैं तो अभी रखिए, क्योंकि और रोमांच बचा है इस खेल में। गेंद को लेकर आदेश भट्ट जो कि अब तक 3 गेंदों में 3 रन खर्च कर चुके हैं, उनके सामने स्ट्राइक एंड पर चिराग शानबाग आ चुके हैं। 21 रन वो बना चुके हैं। 2 रन उन्होंने पिछले गेंद पर बटोर लिया। बहुत सूझबूझ के साथ उन्होंने देखा कि इनफील्ड में फील्डर मौजूद हैं, जानबूझकर उन्होंने उनके ऊपर से गेंद को लॉफ्ट किया ताकि 2 रन का रास्ता बनाया जा सके। दोबारा पसीने को दूर कर लिया। आज कौन कह सकता है कि चिराग कोई अंतर्राष्ट्रीय का बैट्समैन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैट्समैन नहीं है? दूर वाले छोर से आदेश भट्ट क्या अपने टीम की लाज को बचा पाएंगे? 1 रन की दरकार है। क्या अपने टीम के आन बान और शान को बचाने में सफल हो पाएंगे? उनके तरकश में कौन सा ऐसा तीर है जो 3 गेंदों में रनों को रोक सकता है? दूर वाले छोर से राउंड विकेट और चिराग इस बार बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया, गिल्लियां उड़ गई और इसी के साथ एक और बड़ा विकेट गिरा। चिराग शानबाग आउट हो गए। कमाल की गेंद थी। अभी रोमांच बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बात है। क्या जीपीएल में, हालांकि जीपीएल में नहीं, किसी और श्रृंखला में आपने इतना रोमांच से भरा खेल देखा है? फाइनल इसे कहते हैं। ड्रोन सारे दृश्य को कैप्चर कर रहा है और YouTube पर लाइव इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा रहा है। देश विदेशों में टीवी स्क्रीन के सामने, मोबाइल पर जितने सारे दर्शक हैं वो बिल्कुल
अपने दांतों के तले नाखूनों को चबा रहे होंगे कि आखिर इस मैच में कौन जीतेगा। 2 गेंदों में अगर रन नहीं बनता है तो वलालंकले फाइटर्स जो कि इस मैच को बराबरी पर ले आ सकता है, लेकिन 1 रन अगर बनता है तो मुंबई पल्टन्स जो कि विजेता बन जाएगा। क्या रोक सकते हैं आदेश भट्ट? क्या उसी अंदाज में गेंद कर सकते हैं? कमाल की गेंद थी। आइए उस गेंद का दोबारा विश्लेषण करते हैं। चिराग शानबाग जो काफी सेट हो चुके थे, उनको अगर बीट करना है तो आदेश भट्ट के पास एक ऐसी गेंद थी, जानबूझकर उन्होंने गेंद को थोड़ा सा स्लो आर्म डिलीवरी कहते हैं। चिराग थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आना चाहते थे, धीरे से पुश करने के प्रयास में क्रीज से रह गए और विकेट कीपर ने जल्दी उड़ा दिया। इस छोर से गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया, कमाल का स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक के साथ ही 1 रन पूरा हुआ और मुंबई पल्टन्स ने इस मैच को जीत लिया है। वो बन गए हैं चैंपियन। डीजे 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 मुंबई पल्टन्स बन गए चैंपियन। कमाल का मैच, और इस शानदार रन के साथ मुंबई पल्टन्स ने वलालंके फाइटर्स मुल्की को परास्त किया और वलालंके फाइटर्स रनर्स अप रह चुका है। और मैं जैसा पहले कह चुका हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। हार और जीत सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जितना श्रेय विजेता को जाता है उतना ही वलालंके को जाएगा। और जिस तरह से वलालंके के गेंदबाजों ने कप्तान ने कप्तानी की है, जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया, उनको बहुत बहुत बधाई हो। इस मैच को उन्होंने रोमांच से भर दिया, आसानी से जीतने नहीं दिया, लेकिन मुंबई पल्टन्स आखिर दम तक उन्होंने एक योद्धा की तरह लड़ते हुए, विशेष रूप से चिराग शानबाग ने कमाल की बल्लेबाजी की। आज महेंद्र सिंह धोनी की तरह उन्होंने बहुत संयम के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस फजलुल्लाह जीपीएल उत्सव 2021 को जीतकर एक नया खिताब, एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन, बहुत बहुत बधाई हो मुंबई पल्टन्स को। और कमेंटेटर बॉक्स से इतना ही। सुरेश भट्ट जी, सतीश गोपी और अजय राज जो आपको आंखों देखा हाल सुना रहे थे बारी बारी अंग्रेजी और हिंदी में, और जितने सारे अंपायर्स हैं, स्कोरर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नीशियंस को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आगे का विवरण आयोजन करता हूं से अनुरोध करूंगा कि वो जिम्मेदारी को संभाले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो माइक चेक। फूड कोर्ट अंतू फुड्डाच्या व्यवस्था केला, जेवण कोरनूची सकणा नाही बाय सरका आणि